100% অর্থ দিয়ে তাদের সঙ্গে কাজ করছেন। আরেকটা আনন্দের বিষয়, শুধু তাদের কোচিং এর জন্য অর্থ দিচ্ছেন, তাদের ট্রেনারের জন্য অর্থ দিচ্ছেন, বাইরে যাওয়ার জন্য অর্থ দিচ্ছেন, খাওয়া দাওয়া ভালো পুষ্টিকর খাবার জন্য অর্থ দিচ্ছেন, তাই নয়, তাদেরকে হাত খরচার জন্য প্রত্যেক মাসে প্রত্যেকটা প্লেয়ারকে 50,000 টাকা করে ভারত সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি সেই ব্যবস্থাটা করে দিয়েছেন। আজকে সুস্থ খেলাধুলার মাধ্যমে, যোগার মাধ্যমে, আজকে যোগা সমস্ত বিশ্বের মধ্যে আমরা যোগাকে উপহার দিয়েছি। সেটা আমাদের ধরোহর, আমাদের সম্পত্তি, আমাদের সংস্কৃতি। আজকে গোটা বিশ্ব বা ধলাইকে মিলিয়ে শুধু নর্থের জন্য নয়, এটা গোটা ত্রিপুরার জন্য একটা আনন্দ ঘন মুহূর্ত, একটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত। আমাদের প্রজন্ম খেলাধুলা করবে, তার জন্য একটা পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে। আজকের শুভ দ্বার উদ্ঘাটন যেটা হয়েছে, মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন টিসি এর সম্মানীয় সভাপতি শ্রী তপন লোধ মহোদয়, এবং আমরা দুজন একই মহকুমা এবং এক স্কুলের স্টুডেন্ট, আমরা দুজনে রয়েছেন। এই ধর্মনগর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সম্পাদক রয়েছেন। জায়গা যাওয়ার দরকার, যে কোনো ছোট্ট একটা বিষয় হলেও উনি আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক করেন, যে ধর্মনগরের হোক, নর্থের হোক, দশদা কাঞ্চনপুর হোক আর কুর্তি কদমতলা হোক, তিনি শুধু ধর্মনগর মেইন টাউনটাকে দেখেন না, গোটা নর্থ ত্রিপুরাকে রিপ্রেজেন্ট করছেন। এমন আমাদের যিনি সাহিত্যিক, নাট্যকার এবং উনি আমাদের এই অঞ্চলের জনপ্রিয় বিধায়ক শ্রী বিশ্ববন্ধু সেন মহোদয়, রাজ্যের ডেপুটি স্পিকার রয়েছেন। উনি খুদে খেলোয়াড় রয়েছে, তাদেরকে ওনাকে দেখার একটা সুযোগ করে দিয়েছেন, তার জন্য টিসিএকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আর আরেকজন প্লেয়ার আপনাদের সামনে রয়েছে, তিনি হচ্ছেন আগে আপনার ধর্মনগর পৌর পরিষদের যিনি চেয়ারম্যান, উনিও ক্রিকেট প্লেয়ার, আমার স্নেহের ছোট ভাই প্রদ্যুৎ, উনিও প্লেয়ার। বলছেন দিদি আগে তো আমরা যে খেলতাম মানে হাতটা ব্যথা পেতাম, আমরা এত মাঠ আমাদের কাছে ছিল না। তো আমরা বিগত দিনে যে স্বপ্নটা দেখছিলাম, সেই স্বপ্নটা আজকে সত্যি বাস্তবায়িত হচ্ছে। আজকে যারা শুধু নাগরিকবৃন্দ, আমার মিডিয়ার, সোশ্যাল মিডিয়ার যারা বন্ধুরা রয়েছেন, নিউ মিডিয়ার যারা বন্ধুরা রয়েছেন, সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন আজকের এই একটা ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হওয়ার জন্য। গত 2-3 দিন ধরে আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখছি যে এটা ধর্মশালা নয়, এটা ধর্মনগর। ক্যাপশনটা দেখছি যে হিমাচল প্রদেশের ধর্মশালা একটা যে ক্রিকেটের গ্রাউন্ড রয়েছে, সেটার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে আমাদের ধর্মনগরকে। কেউ যাতে এটাকে অকল্পনীয়, অদ্ভুত না ভাবে, যেটা অন্য স্টেটের, অন্য জায়গার, সেটা অন্য জায়গার না, আমার আপনার শহর ধর্মনগরের একটা মাঠ। সেই মাঠে আমাদের ছেলেরা, আমাদের মেয়েরা খেলাধুলা করবে। এবং ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের যে লক্ষ্য, আমিও তাদের খেলাধুলাটাকে ভালোবাসি। গত রাত্রে আমরা কেউ ব্রাজিলের ভক্ত, কেউ আর্জেন্টিনার ভক্ত, মোটামুটি আমরা বেশিরভাগে হয় আর্জেন্টিনা নতুবা ব্রাজিলকে ভালোবাসি। কত দূরে আমাদের থেকে, তারপর আমরা ফুটবলটাকে ভালোবাসি এত, এবং ফুটবলটার থেকে বেশি ভালোবাসি দুইটা দেশকে। কাউর একটু মন খারাপ হয়েছে, ব্রাজিল সরে গেছে, কিন্তু আমি আপাত মস্তক সারা জীবন আর্জেন্টিনার আমি সাপোর্টার। জিতবে হারবে আমার কিছু আসে যায় না, আমি আর্জেন্টিনা। তো আমরা রাত্রি জেগেও খেলাধুলা দেখেছি। আমরা ক্রিকেটকে ভালোবাসি, আমরা ফুটবলকে ভালোবাসি, আমরা যে কাবাডি হোক, আমাদের ভলিবল হোক, সব খেলাধুলাকে আমরা ভালোবাসি। কিন্তু ভালোবাসলে হবে না, তার জন্য একটা পরিকাঠামোর প্রয়োজন রয়েছে। আর পরিকাঠামো হচ্ছে সর্বোপরি একটা মাঠ, একটা মাঠের প্রয়োজন। আজকে আমাদের অনেক দিনের যে আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল, আমাদের প্রয়োজনীয়তা ছিল, আজকে আমরা পেয়েছি। এই খেলাধুলা দিয়েও আমাদের ভবিষ্যৎ নির্মাণ হবে, আমাদের প্রজন্ম এগিয়ে যাবে। আজকে কেউ যদি মনে করে যে আমাদের যারা ছোট বাচ্চা ছেলেমেয়েরা রয়েছে তারা আমাদের পরিবারের, আমি বলবো না, তারা আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ। আজকে যারা ঋদ্ধিমান সাহা শুধু উনার বাবা মার ছেলে না, উনি আজকে ভারতের গর্ব, আজকে ভারতকে প্রতিনিধিত্ব করছেন। আমাদের দীপা কর্মকার থেকে প্রত্যেকটা প্লেয়ার আমার দেশকে প্রতিনিধিত্ব করছেন। ভারত সরকারের মাননীয় যিনি প্রধানমন্ত্রী রয়েছেন, যশস্বী প্রধানমন্ত্রী, খেলো ইন্ডিয়া, গ্রামের খেলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রত্যেকটা জায়গায় স্টেডিয়াম করা, খেলাধুলার মাঠ তৈরি করা, জিম তৈরি করার প্রত্যেকটা জায়গায় নিরলস প্রচেষ্টা চলছে গত 8 বছর ধরে। আমি গত
কিছুদিন আগে যখন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হচ্ছিল তখন রাষ্ট্রপতিজির সঙ্গে ক্যাম্পেনিং পদপ্রার্থী মাননীয়া মহামহিম দ্রৌপদী মুর্মুজির সঙ্গে ওনার সঙ্গে আমি 3 দিন ট্রাভেল করার সুযোগ হয়েছিল। আমার সঙ্গে সম্বিত পাত্রাজি এবং আমাদের সর্বানন্দ সোনোয়াল যিনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন আসামের এবং তিনি প্রাক্তন স্পোর্টস মিনিস্টারও ছিলেন। 2014 সালে যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন তখন স্পোর্টস মিনিস্টার ছিলেন। তো তিনি ট্রাভেল করেছি, তখন ওনাকে আমি বলেছি যে আমার রাজ্যের যে মেয়ে দীপা কর্মকার ও কিন্তু আপনার কাছে অনেক বেশি কৃতজ্ঞ যে আপনার জন্য আজকে যে জায়গাটা সে দাঁড়িয়ে রয়েছে আপনার ভূমিকা অনেক বেশি ছিল। তখন গল্পটা উনি কাহিনীটা আমাকে বলেছেন যে আগরতলা এয়ারপোর্টে আমি যখন 2016 সালে এসেছিলাম তখন দীপা কর্মকার আগরতলা এয়ারপোর্টে আমার সঙ্গে দেখা করে এসে উনি বলেছিলেন যে আমার কিছু টাকা পয়সার দরকার, ভারতবর্ষের বাইরে গিয়ে আমাকে ট্রেনিং নিতে হবে, তাহলে আমি ভালো কিছু করতে পারবো। তৎক্ষণাৎ আমাদের সর্বানন্দ সোনোয়াল বলেছেন প্রধানমন্ত্রীর আদেশ ছিল আমাদের এইসব প্লেয়ারদেরকে সহযোগিতা করার জন্য। দীপা কর্মকারকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে তোমার টোটাল কত টাকা, কত ফান্ডিং লাগবে তোমাকে সবকিছু সম্পূর্ণ করতে, যে বড় জায়গাতে কম্পিট করতে হলে তোমাকে প্রস্তুতি নিতে গেলে কত ফান্ডিং এর দরকার রয়েছে। দীপা কর্মকার 80 লাখ টাকা চেয়েছিলেন অন দ্য স্পট, তার জন্য 80 লাখ টাকা সেই সময়ে স্যাংশন করা হয়েছে। তো সেদিন আমাকে দাদা বলেছেন শুধু দীপা কর্মকার না, আজকে যারা অলিম্পিকে পদক পাচ্ছে, প্যারা অলিম্পিক বলুন এমনিতে অলিম্পিক বলুন, প্রত্যেকটা প্লেয়ারকে 2 থেকে 2.5 বছর ধরে কোভিডের সময়ও ভারতবর্ষের বাইরে নিয়ে গিয়ে কিভাবে তাদেরকে গড়ে তোলা যায় ভারত সরকার সম্পূর্ণভাবে 100% অর্থ দিয়ে তাদের সঙ্গে কাজ করতেন। আরেকটা আনন্দের বিষয়, শুধু তাদের কোচিং এর জন্য অর্থ দিচ্ছেন, তাদের ট্রেনারের জন্য অর্থ দিচ্ছেন, বাইরে যাওয়ার জন্য অর্থ দিচ্ছেন, খাওয়া দাওয়া ভালো পুষ্টিকর খাবার জন্য অর্থ দিচ্ছেন, তাই নয়, তাদেরকে হাত খরচার জন্য প্রত্যেক মাসে প্রত্যেকটা প্লেয়ারকে 50,000 টাকা করে ভারত সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি সেই ব্যবস্থাটা করে দিয়েছেন। আজকে সুস্থ খেলাধুলার মাধ্যমে, যোগার মাধ্যমে, আজকে যোগা সমস্ত বিশ্বের মধ্যে আমরা যোগাকে উপহার দিয়েছি, সেটা আমাদের ধরোহর, আমাদের সম্পত্তি, আমাদের সংস্কৃতি। আজকে গোটা বিশ্ব যোগাকে নিজেরা নিজেদের জীবনধারার একটা অঙ্গ হিসাবে সেটাকে নিয়ে নিয়েছে এবং সুস্থ থাকার জন্য, সবল থাকার জন্য, আমরা যখন সুস্থ থাকব, আমরা সবল থাকব, আমরা ভালো কাজ করতে পারবো। সুস্থ শরীর সুস্থ মন নিয়ে আমরা সমাজের জন্য, রাষ্ট্রের জন্য, দেশের জন্য আমরা নিয়োজিত হতে পারবো, আমরা কাজ করতে পারবো। তার জন্য খেলাধুলা হচ্ছে প্রকৃষ্ট একটা জায়গা, একটা মাধ্যম। আমাদের স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে গীতা পাঠ থেকে ফুটবল খেলাটা অনেক বেশি শ্রেয়। উনি গীতাকে ছোট করেননি, কিন্তু ফুটবল খেলে যখন মন এবং শরীর ভালো থাকবে তখনই গীতা পাঠটা ভালোভাবে করতে পারবে। সেই বিষয়টা আমাদের বিশ্ববরণ্য ঋষি, যাকে আমরা আদর্শ মানে, শুধু ভারতবর্ষ নয় গোটা দুনিয়া যাকে আদর্শ মানে, সে স্বামী বিবেকানন্দ সেই কথা বলেছিলেন। আরেকটা কথা বলেছিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত লক্ষ্যে না পৌঁছবে ততক্ষণ পর্যন্ত কাজ করে যেতে হবে। তাই আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন এবং আমরা সবাই মিলে তাদেরকে অনুরোধ করব, ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটা সাব ডিভিশন, 18টা সাব ডিভিশন রয়েছে, 18টা সাব ডিভিশনের মধ্যে টাইম বাউন্ড করে যাতে এই ধরনের মাঠ এবং জিমনাসিয়ান, যে জিমন্যাস্টিক করার জন্য, তাদের জিম করার জন্য সবকিছু পরিকাঠামো যাতে আগামী 3 বছরের মধ্যে আপনারা করতে পারেন, আপনাদের কাছে সেই রিকোয়েস্ট আমার তরফ থেকে রয়েছে এবং রাজ্যের মানুষের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আমরা অনুরোধ করছি। কারণ ক্রিকেট এমন একটা বিষয়, ভারতবর্ষের ক্রিকেট বিশ্ব ক্রিকেটকে শাসন করার মতো যথেষ্ট অর্থ আমাদের রয়েছে। তাছাড়া মাননীয় সম্পাদক মহোদয় টিসিএর এখন একটা কথা বলেছেন, একটা আনন্দের খবর আমাদেরকে দিয়েছেন, সেটা হচ্ছে প্রিমিয়ার লিগ, যেটা আইপিএল টাইপের T20 হয়, এটা ত্রিপুরারও একটা 20 মানে টিপিএল, ত্রিপুরা প্রিমিয়ার লিগ, ত্রিপুরা মেয়েদেরকে দিয়ে শুরু করছে। আমি মহিলা হিসাবে, মেয়ে হিসাবে আমি অত্যন্ত আনন্দিত, গর্বিত এবং ধন্যবাদ জানাই অর্গানাইজারদেরকে। বায়ুজের মতো আপনারা প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে আপনারা যুক্ত হয়েছেন, আপনারা চুক্তিবদ্ধ করেছেন। আগামী 23 তারিখ থেকে মেলাগড়ে মেয়েদের আইপিএল, মেয়েদের টিপিএল হবে, আর কি এটা মেয়েদের প্রিমিয়ার লিগ হবে, T20 হবে। অনেক প্লেয়ার উঠে আসবে আমাদের রাজ্যের, মেয়েরাও তাদের ভবিষ্যৎ নির্মাণ করবে এবং ক্রিকেটের মাধ্যমে আমাদের ছেলে মেয়েরা নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে পারবে, সেই একটা প্ল্যাটফর্ম হবে। এবং এটার পরে যাতে ছেলেদেরও
টিপিএল হয় তার আমি অনুরোধ করব, ছেলে মেয়ে দুটোটা যাতে হয়। এবং ক্রিকেটের ক্লাব ক্রিকেট হোক, সাব ডিভিশন ক্রিকেট হোক, আমাদের যে স্কুল ক্রিকেট, সবটা ক্রিকেটকে যাতে একটা সূত্রে গেঁথে নিয়ে একটা সিস্টেমের মধ্যে ফেলে আমাদের ক্রিকেটটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সেই লক্ষ্যে আপনারা কাজ করবেন, সেই প্রত্যাশা রাখছি। এবং আমরা এখনো ক্রিকেট উপভোগ করব সেই প্রত্যাশা রেখে, এবং আগামী দিন এই উত্তর ত্রিপুরাবাসীর কাছে আমি আবেদন রাখবো, অনুরোধ করব, এই মাঠটা আমাদের প্রত্যেকের, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের নয়, এটা আমাদের প্রত্যেকের। এই মাঠটা আমাদের সম্পদ, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই জায়গা থেকে তৈরি হবে। আমরা সবাই যাতে মাঠটার দেখভাল করি, আমরা যাতে দেখরেখ করি, মাঠটা যাকে আমরা যত্ন করি, সেটাকে যাতে সুন্দরভাবে আমরা যত্ন করে রাখি, সেই প্রত্যাশা রেখে আজকে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন জানাই। আপনারা আমাদের বদলেছে দিন, বদলেছে হাওয়া, প্রতি ঘরে সুশাসন সরকারের চাওয়া, যা রয়েছে বাকি জনগণের অধিকার, সব পাচ্ছে কি হবে দেখা মেলা শিবির, বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে, বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে, বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে। ত্রিপুরার উন্নয়নে আপনারাও অংশগ্রহণ করুন, কল করুন 1905 নম্বরে। বিনা ঘরে শুনেন শুনেন প্রিয় রাজ্যবাসী, শুনেন শুনেন সুখী সরকারি সহায়তায় হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। 1905 নম্বরে যোগাযোগ করুন, কথা বলুন। সরকারের হাত শক্ত করুন নিজের মতামত দিয়ে। শুনেন শোনেন শুদ্ধি শুনেন শোনেন শুদ্ধি এই রাজ্যের গ্রাম শহরে হবে বিকাশ নীতি, তারই সাথে জেলায় মেলা শিবির হবে দুদিন। আমাদের সাথে আছেন বিধায়ক মন্ত্রীগণ, আমাদের সাথে আছেন বিধায়ক মন্ত্রীগণ, তাই তো এবার পৌঁছে যাবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। স্বাস্থ্য শিক্ষা কৃষি আর পরিবহন এসবের সুযোগ সুবিধা পাবেন জনগণ। সবার সাথে আছেন মোদের প্রশাসন, সবার সাথে আছেন মোদের প্রশাসন, এভাবেই পৌঁছে যাবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। শুনেন শুনেন প্রিয় রাজ্যবাসী, শুনেন শুনেন সুখী নকথুগুই সামগাহাম, নকথুগুই সুশাসন। খাজানি ও কিছু তন্ত চাং নগরু চুবা চুবুরুম
Hacu burung burung Hasute hapangnia Jagdi kutum kerung সাহায্যকু বুক চা পা অ নম্বর গরংলাইদি তাই কক সালাইদি Hi hoi himbai di Jini kicing shong Hi hoi himbai di Mare kicing shong Sabai di khani ko tatong di ungklo ungklo Sabai di Hani ko Tatong di Uklok uklok Kapangni bodol sheba Tumsi di lama kolok Khana bai di O mare shong Khajani o kicing shong Kamiwo, tuliwo, angkor bai moya logo MLA Mantri bai Haste ni MP rong bai Meeting go achuk lage Jab lagi hamkai niko Khana bai di o mare shong Khajani o kicing shong Tei matho Hugbawo Tei gala no brum brumo Dimantho hukbawo Tigola no brum brumo Sakhami mantho gumo Tunjangai no brum brumo Khana bai di o mare shong Khajani o kicing shong Khana bai di o mare shong Khajani o kicing shong কিছুদিন আগে যখন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হচ্ছিল তখন রাষ্ট্রপতিজির সঙ্গে ক্যাম্পেনিং পদপ্রার্থী মাননীয়া মহামহিম দ্রৌপদী মুর্মুজির সঙ্গে ওনার সঙ্গে আমি 3 দিন ট্রাভেল করার সুযোগ হয়েছিল। আমার সঙ্গে সম্বিত পাত্রাজি এবং আমাদের সর্বানন্দ সোনোয়াল যিনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন আসামের এবং তিনি প্রাক্তন স্পোর্টস মিনিস্টারও ছিলেন। 2014 সালে যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন তখন স্পোর্টস মিনিস্টার ছিলেন। তো তিনি ট্রাভেল করেছি তখন ওনাকে আমি বলেছি যে আমার রাজ্যের যে মেয়ে দীপা কর্মকার ও কিন্তু আপনার কাছে অনেক বেশি কৃতজ্ঞ যে আপনার জন্য আজকে যে জায়গাটা সে দাঁড়িয়ে রয়েছে আপনার ভূমিকা অনেক বেশি ছিল। তখন গল্পটা উনি কাহিনীটা আমাকে বলেছেন যে আগরতলা এয়ারপোর্টে আমি যখন 2016 সালে এসেছিলাম তখন দীপা কর্মকার আগরতলা এয়ারপোর্টে আমার সঙ্গে দেখা করে এসে উনি বলেছিলেন যে আমার কিছু টাকা পয়সার দরকার, ভারতবর্ষের বাইরে গিয়ে আমাকে ট্রেনিং নিতে হবে, তাহলে আমি ভালো কিছু করতে পারবো। তৎক্ষণাৎ আমাদের সর্বানন্দ সোনোয়ালজি বলেছেন প্রধানমন্ত্রীর আদেশ ছিল আমাদের এইসব প্লেয়ারদেরকে সহযোগিতা করার জন্য। দীপা কর্মকারকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে তোমার টোটাল কত টাকা কত ফান্ডিং লাগবে তোমাকে সব কিছু সম্পূর্ণ করতে, যে বড় জায়গাতে কম্পিট করতে হলে তোমাকে প্রস্তুতি নিতে গেলে কত ফান্ডিং এর দরকার রয়েছে। দীপা কর্মকার 80 লাখ টাকা চেয়েছিলেন অন দ্য স্পট, তার জন্য 80 লাখ টাকা সেই সময়ে স্যাংশন করা হয়েছে। তো সেদিন আমাকে দাদা বলেছেন শুধু দীপা কর্মকার না, আজকে যারা অলিম্পিকে পদক পাচ্ছে, প্যারা অলিম্পিক বলুন এমনিতে অলিম্পিক বলুন, প্রত্যেকটা প্লেয়ারকে 2 থেকে 2.5 বছর ধরে কোভিডের সময়ও ভারতবর্ষের বাইরে নিয়ে গিয়ে কিভাবে তাদেরকে গড়ে তোলা যায় ভারত সরকার সম্পূর্ণভাবে 100% অর্থ দিয়ে তাদের সঙ্গে কাজ করছেন। আরেকটা আনন্দের বিষয়, শুধু তাদের কোচিং এর জন্য অর্থ দিচ্ছেন, তাদের ট্রেনারের জন্য অর্থ দিচ্ছেন, বাইরে যাওয়ার জন্য অর্থ দিচ্ছেন, খাওয়া দাওয়া ভালো পুষ্টিকর খাবার জন্য অর্থ দিচ্ছেন, তা নয়, তাদেরকে হাত খরচার জন্য প্রত্যেক মাসে প্রত্যেকটা প্লেয়ারকে 50,000 টাকা করে ভারত সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি সেই ব্যবস্থাটা করে দিয়েছেন। আজকে সুস্থ খেলাধুলার মাধ্যমে যোগার মাধ্যমে আজকে যোগা সমস্ত বিশ্বের মধ্যে আমরা যোগাকে উপহার দিয়েছি, সেটা আমাদের ধরোহর, আমাদের সম্পত্তি, আমাদের সংস্কৃতি। আজকে গোটা বিশ্ব যোগাকে নিজেরা নিজেদের জীবনধারার একটা অঙ্গ হিসাবে সেটাকে নিয়ে নিয়েছে এবং সুস্থ থাকার জন্য সবল থাকার জন্য আমরা যখনই সুস্থ থাকবো আমরা সবল থাকবো, আমরা ভালো কাজ করতে পারবো। সুস্থ শরীর সুস্থ মন নিয়ে আমরা সমাজের জন্য রাষ্ট্রের জন্য দেশের জন্য আমরা নিয়োজিত হতে পারবো, আমরা কাজ করতে পারবো। তার জন্য খেলাধুলা হচ্ছে প্রকৃষ্ট একটা জায়গা, একটা মাধ্যম। আমাদের স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে গীতা পাঠ থেকে ফুটবল খেলাটা অনেক বেশি শ্রেয়। উনি গীতাকে ছোট করেননি, কিন্তু ফুটবল খেলে যখন মন এবং শরীর ভালো থাকবে তখনই গীতা পাঠটা ভালোভাবে করতে পারবে। সেই বিষয়টা আমাদের বিশ্ববরেণ্য ঋষি
যাকে আমরা আদর্শ মানি, শুধু ভারতবর্ষ নয় গোটা দুনিয়া যাকে আদর্শ মানে, সে স্বামী বিবেকানন্দ সেই কথা বলেছিলেন। আরেকটা কথা বলেছিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত লক্ষ্যে না পৌঁছবে ততক্ষণ পর্যন্ত কাজ করে যেতে হবে। তাই আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন এবং আমরা সবাই মিলে তাদেরকে অনুরোধ করব, ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটা সাব ডিভিশন, 18টা সাব ডিভিশন রয়েছে, 18টা সাব ডিভিশনের মধ্যে টাইম বাউন্ড করে যাতে এই ধরনের মাঠ এবং জিমনাসিয়ান, যে জিমন্যাস্টিক করার জন্য, তাদের জিম করার জন্য সবকিছু পরিকাঠামো যাতে আগামী 3 বছরের মধ্যে আপনারা করতে পারেন, আপনাদের কাছে সেই রিকোয়েস্ট আমার তরফ থেকে রয়েছে এবং রাজ্যের মানুষের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আমরা অনুরোধ করছি। কারণ ক্রিকেট এমন একটা বিষয়, ভারতবর্ষের ক্রিকেট বিশ্ব ক্রিকেটকে শাসন করার মতো যথেষ্ট অর্থ আমাদের রয়েছে। তাছাড়া মাননীয় সম্পাদক মহোদয় টিসিএর এখন একটা কথা বলেছেন, একটা আনন্দের খবর আমাদেরকে দিয়েছেন, সেটা হচ্ছে প্রিমিয়ার লিগ, যেটা আইপিএল টাইপের T20 হয়, এটা ত্রিপুরারও একটা 20 মানে টিপিএল, ত্রিপুরা প্রিমিয়ার লিগ, ত্রিপুরা মেয়েদেরকে দিয়ে শুরু করছে। আমি মহিলা হিসাবে, মেয়ে হিসাবে আমি অত্যন্ত আনন্দিত, গর্বিত এবং ধন্যবাদ জানাই অর্গানাইজারদেরকে। বায়ুজের মতো আপনারা প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে আপনারা যুক্ত হয়েছেন, আপনারা চুক্তিবদ্ধ করেছেন। আগামী 23 তারিখ থেকে মেলাগড়ে মেয়েদের আইপিএল, মেয়েদের টিপিএল হবে আর কি, এটা মেয়েদের প্রিমিয়ার লিগ হবে, T20 হবে। অনেক প্লেয়ার উঠে আসবে আমাদের রাজ্যের, মেয়েরাও তাদের ভবিষ্যৎ নির্মাণ করবে এবং ক্রিকেটের মাধ্যমে আমাদের ছেলে মেয়েরা নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে পারবে, সেই একটা প্ল্যাটফর্ম হবে। এবং এটার পরে যাতে ছেলেদেরও টিপিএল হয় তার আমি অনুরোধ করব, ছেলে মেয়ে দুটোটা যাতে হয়। এবং ক্রিকেটের ক্লাব ক্রিকেট হোক, সাব ডিভিশন ক্রিকেট হোক, আমাদের যে স্কুল ক্রিকেট, সবটা ক্রিকেটকে যাতে একটা সূত্রে গেঁথে নিয়ে একটা সিস্টেমের মধ্যে ফেলে আমাদের ক্রিকেটটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সেই লক্ষ্যে আপনারা কাজ করবেন, সেই প্রত্যাশা রাখছি। এবং আমরা এখনো ক্রিকেট উপভোগ করব সেই প্রত্যাশা রেখে, এবং আগামী দিন এই উত্তর ত্রিপুরাবাসীর কাছে আমি আবেদন রাখবো, অনুরোধ করব, এই মাঠটা আমাদের প্রত্যেকের, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের নয়, এটা আমাদের প্রত্যেকের। এই মাঠটা আমাদের সম্পদ, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই জায়গা থেকে তৈরি হবে। আমরা সবাই যাতে মাঠটার দেখভাল করি, আমরা যাতে দেখরেখ করি, মাঠটা যাকে আমরা যত্ন করি, সেটাকে যাতে সুন্দরভাবে আমরা যত্ন করে রাখি, সেই প্রত্যাশা রেখে আজকে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন জানাই। আপনারা আমাদের বদলেছে দিন, বদলেছে হাওয়া, প্রতি ঘরে সুশাসন সরকারের চাওয়া, যা রয়েছে বাকি জনগণের অধিকার, সব পাচ্ছে কি হবে দেখা মেলা শিবিরে। বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে, বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে, বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে। ত্রিপুরার উন্নয়নে আপনারাও অংশগ্রহণ করুন। আজকেই কল করুন 1905 নম্বরে।
বিনা ঘরে আর থাকবে না তো কেউ, বিনা ঘরে আর থাকবে না তো কেউ। চারিদিকে বইছে এবার উন্নয়নের ঢেউ। পিএম আবাস যোজনায় পেয়েছে পাকা বাড়ি, পিএম আবাস যোজনায় পেয়েছে পাকা বাড়ি। 3 লক্ষ মানুষের হয়েছে স্বপ্ন পূরণ। আপনাদের সহায়তায় আসছে প্রশাসন, হবে এবার প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে এবার প্রতি ঘরে সুশাসন। ত্রিপুরার উন্নয়নে আপনারাও অংশগ্রহণ করুন। আজকেই কল করুন 1905 নম্বরে। গলি গলি মহল্লায় সুর শোনা যায় একটা, গলি গলি মহল্লায় সুর শোনা যায় একটাই, মানুষের অধিকার ঘরে ঘরে আবার আসছে সুখের দিন, হচ্ছে বিকাশ মিটিং, প্রতি ব্লকে পঞ্চায়েতে গ্রাম পাহাড়ের উন্নয়ন, হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে প্রতি ঘরে সুশাসন। গ্রাম শহরের অলি গলি সবার মুখে একই বুলি, গ্রাম শহরের অলি গলি সবার মুখে একই বুলি, পৌঁছে দিতে উন্নয়নের সবার ঘরে প্রশাসন। এখন হবে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, এখন হবে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, এখন হবে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন। को ये बात मन में आ रहा होगा, ये पिपरासा लोग जंतर मंतर में क्यों आया है। मोदी को मालूम है यह बात, दिल्ली की सरकार को मालूम है। पिपरासा लोग 184 किंग्स त्रिपुरा में शासन किया था, यह बात मोदी जी को भी मालूम है। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी को यह बात मालूम नहीं होता तो महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट नहीं बनाता, नाम नहीं दिया जाता। और ये बात भी सच है, मोदी जी को यह बात अच्छी तरह मालूम है कि पिपरासा लोग किस हालत से गुजर रहा है। फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा पूरे देश को, पिपरासा लोगों के पास आज कुछ नहीं है। कई एक जमाना थे, हमारा महाभारत में आप देखिए महाराजा त्रिलोचन जी का कुछ बातें वहां लिखा गया। हमारे राजमाला में भी ये बात अच्छा से लिखा था कि महाभारत में युधिष्ठिर जब अपने जंग जीतने के बाद एक यज्ञ किया था उन्होंने, और उस राजसूय यज्ञ में अगर हमारा महाराज त्रिलोचन जी त्रिपुरा से यहां नहीं आता तो युधिष्ठिर जी का वो यज्ञ संपूर्ण नहीं होते थे। और मैं पूरे देश को बोलना चाहता हूं, आज जो हम पिपरासा लोग हैं वही महाराजा त्रिलोचन जी का जनरेशन, उनके जो बिरादरी जो था अपने महाराज लोग, उनका ही हम पिपरासा लोग हैं। और आज इतना शासन करने के बाद इन त्रिपुरा वी हैव बिकम माइनॉरिटी। ये बात फिर से हम लोग कहना चाहूंगा दिल्ली में,
जब हम लोग शासन करते थे त्रिपुरा में, हमारा महाराज लोग जब शासन करता था त्रिपुरा को, हमको कोई हारा नहीं पाया, हम नहीं हारते थे। हुसैन शाह को हम हराया था। और ब्रिटिश लोग जब इंडिया को दूसरा साल शासन किया था, तब भी त्रिपुरा हम स्वाधीन थे, हमको कोई नहीं हारा पाया। लेकिन जब 1949 में इंडिया के साथ हम मर्जर एग्रीमेंट किया, इंडिया में हम आ गया, तब से हमारा हार शुरू हो गया। हम जब 1949 में मर्जर एग्रीमेंट किए थे, हम त्रिपुरा में तब मेजोरिटी था। आज 2022 साल में आके त्रिपुरा लोग अपनी ही राज्य में सिर्फ 30% हो गया। उसका कारण कौन है? कौन जिम्मेवार है इसके लिए? इसके लिए जिम्मेवार है भारत सरकार। आज भारत सरकार को याद दिलाने के लिए आया हम लोग, त्रिपुरा लोग होके मोदी जी के पास ये डिमांड रखने के लिए हम लोग आया कि मोदी जी, त्रिपुरा लोग इतना सहनते इस मोड़ पे खड़ा है। मुझे कोई हिंदी फिल्म का वो गाना याद आ रहा है, उस मोड़ से भी हम गुजरे हैं जिस मोड़ पे सब लूट जाते हैं। त्रिपुरा लोग लूट गया, त्रिपुरा में कुछ बचा नहीं। हमारा लोग, हम आज आपको ये बात बोलने के लिए आया हूं, अगर त्रिपुरा लोगों को अलग एक स्टेट बना करके उनका रक्षा नहीं किया जाए, बचने का और कोई रास्ता नहीं है। ये कोई जाति के खिलाफ नहीं है, ये कोई धर्म के खिलाफ नहीं है। हम मोदी जी और बीजेपी भाजपा को फिर से याद दिलाना चाहता हूं। आप लोग पिछले चुनाव में त्रिपुरा में बोले थे आप लोग कि ये त्रिपुरा लोगों को बचाने के लिए त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल दिया जाएगा। और ये त्रिपुरा लोग अपने भाषा में बात करता है कॉकबोरोक को, उस कॉकबोरोक को लिखने के लिए रोमान स्क्रिप्ट चालू किया जाएगा। कहा गया आपका त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल? 5 साल खत्म हो गया, फिर से चुनाव होगा त्रिपुरा में। आज तक टेरिटोरियल काउंसिल का कोई नजर हमको नहीं मिल रहा। और इसके लिए मोदी जी, लोगों को जो वादा किया था आप लोग, उस वादा को फिर से याद दिलाने के लिए त्रिपुरा मोथा जंतर मंतर में सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन में बैठा है। फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा, जिस भाजपा ने हम लोगों को त्रिपुरा में बोला था रोमान स्क्रिप्ट में आपका कॉकबोरोक को लिखा जाएगा, आज वही बीजेपी सरकार त्रिपुरा का वो बोल रहा रोमान स्क्रिप्ट में नहीं होगा, बंगाली स्क्रिप्ट में होगा। इसके विरोध त्रिपुरा मोथा आंदोलन करेगा। त्रिपुरा मोथा देख के हजम नहीं करेगा इस चीज को। आप बोलते हो मोदी जी, हम सब मिल करके देश को आगे बढ़ाएंगे, कितना अच्छा लगता है। मोदी जी का कुर्ता पिछले बार भी मैं बोला था, फिलहाल मेरे पॉकेट में उतना पैसा नहीं है। इस बार मेरा कुर्ता पिछले बार का जैसा अच्छा नहीं है, क्योंकि हम 1 साल काउंसिल में बैठने के बाद हमने देखा, लास्ट ईयर मोदी जी का बीजेपी सरकार त्रिपुरा में हमको 600 करोड़ रुपए दिया था। इस बार उसको घटा के और कम पैसा दिया। लोगों के लिए काम करने के कोई पैसा नहीं है। ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दिया आपने, अब 30 साल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में हमने देखा त्रिपुरा के लिए डेवलपमेंट के काम हम नहीं कर सकते, पैसा नहीं। वहां के सरकार, त्रिपुरा का सरकार, वो हमें पैसा नहीं देते। आप बोलते हो मोदी जी हर घर सुशासन पोस्टर लगाया जाता है त्रिपुरा में, पूरे देश भर में आज पोस्टर है, जहां भी जाओ मोदी जी का पोस्टर लगाया हुआ है। हम जानते हैं त्रिपुरा के लोग ये हीरा युग में किस दौर से हम गुजर रहे हैं, हम जानते हैं। त्रिपुरा में पीने का पानी नहीं है, पीने के पानी हमारे लिए नहीं है।
हर जगह पीने के पानी का बंदोबस्त करने के लिए आपने बोला था 2022 साल तक पूरे राज्य में हर जगह में आप पीने के पानी के व्यवस्था आप करेंगे। लेकिन त्रिपुरा में जाके देखिए, तिपरासा लोग जहां है वहां पीने के पानी नहीं है। जहां तिपरासा लोग नहीं है उधर पीने का पानी है। मोदी जी, इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से तिपरासा लोगों के लिए कुछ होने वाला नहीं है। हमको सिर्फ एक ही डिमांड, एक ही चीज हमको रक्षा कर सकता है, वो है ग्रेटर तिपरा लैंड। जहां जहां तिपरासा लोग है उस जगह को लेकर के हमने तो मोदी जी को कभी नहीं बोला कोई विकास खाना से रोटी छीन करके तिपरासा लोगों को दो, कोई मटन रथी का चिकन का हड्डियां हमको छीन करके कोई देपरमा जमातिया को दो। ये बात हमने कभी नहीं कहा और कहूंगा भी नहीं। हमने यही बात बोला कि तिपरासा लोग जहां जहां है उसी जगह को लेकर के आप अलग राज्य बना दीजिए। हम लोग थैंक यू बोलते, धन्यवाद देते हैं। भाजपा सरकार को हम धन्यवाद देते हैं। आप लद्दाख में लद्दाखी के लिए आप यूनियन टेरिटरी बना सकते हैं। हमारे तिपरासा 14 लाख तिपरासा के लिए आप क्यों नहीं बना सकते हो? आप बना सकते हैं। कोई बोलता है त्रिपुरा छोटा सा स्टेट, इस स्टेट को अगर बांट दिया जाए तो उस स्टेट का क्या साइज होगा? मैं भारत सरकार को याद दिलाना चाहता हूं, गोवा जो राज्य है, गोवा इज ओनली 3,700 स्क्वायर किलोमीटर। अगर हमारा डीसी को राज्य बनाया जाए उसका जो एरिया है वो 7,370 स्क्वायर किलोमीटर है। गोवा से काफी बड़ा स्टेट होगा, वो क्यों नहीं बनाया जाएगा? उधर कोई लोग त्रिपुरा में अरे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दिया, पैकेज दिया। निर्मला सीतारमन जी, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, आई वांट टू रिमाइंड यू मैडम, when you visited Tripura, you promised that 1,300 crores will be spent for the development of Tiprasa people in Tripura. आज तक एक पैसा, 2 साल गुजर गया, एक पैसा तिपरासा के लिए खर्च नहीं हो रहा है। This is what we want to remind in this sitting demonstration. आपने क्या कुछ नहीं कहा। त्रिपुरा में एम्स जैसा अस्पताल बनाया जाएगा। आप चिल्ला चिल्ला के, भाजपा के कार्यकर्ता लोग चिल्ला चिल्ला के बोला था दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, चेन्नई जाने की जरूरत नहीं है, त्रिपुरा में ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस खोला जाएगा। कहाँ है? मैं मोदी जी को प्रश्न करता हूँ, कहाँ है आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आज त्रिपुरा में? यही चीज के लिए ये कोई मुफ्त से ये लोग नहीं आया। कोई अपना जमीन बिक्री कर दिया, कोई अपना दुकान बिक्री कर दिया, कोई अपने सोने के जो हार होता उसको गिरवी में रख के त्रिपुरा से इतना दूर आया। क्यों आया? मोदी जी जब कुछ नहीं सुन पाता है त्रिपुरा से, जंतर मंतर में जाके मोदी जी के कान में यह आवाज गूंजना चाहिए, तिपरासा को ग्रेटर तिपरालम चाहिए। चुनाव की बात मैं नहीं करना चाहता हूं, चुनाव आएगा और चला जाएगा, ये बात भी याद रखना है। आज हर घर भाजपा की सरकार आप करना चाहते हो, कोई ऑपोजिशन पार्टी ना हो इंडिया में, ये आपका मकसद है। हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन एक बात ये जानना है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम तिपरासा लोग हिंदुस्तानी है, हम दिल से हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी लोग होकर के भी आज बांग्लादेशी लोगों को किया जाता है त्रिपुरा में। एक जमाने में वो हमारा था, आज वहां बांग्लादेशी मिनिस्टर बनता है, चीफ मिनिस्टर बनता है। देश को जानना है ये तिपरासा लोग हिंदुस्तानी है। त्रिलोचन का वंश, ये तिपरासा लोग अपने ही राज्य में आज माइनॉरिटी हो गया, और माइनॉरिटी होने का मतलब ये है
आप पॉलिटिकल डिसीजन नहीं ले सकते हो। अगर कोई त्रिपुरा को सीएम भी बनाया जाएगा, वो कोई डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि डेमोक्रेसी में आपका नंबर गेम होता, आपका एमएलए ज्यादा होना चाहिए, एमपी ज्यादा होना चाहिए, तब आप डिसीजन ले पाएंगे। तो ये पैकेज की बात करके त्रिपुरा लोगों को अगर आप लोग चुपचाप बैठो, पैकेज देंगे, 2000 करोड़ देंगे, 5000 करोड़ देंगे। मोदी जी, हम लोग विनती करते हैं, हमको 5000 10,000 करोड़ नहीं चाहिए, कोई पैसा मत दीजिए आप, लेकिन ग्रेटर त्रिपुरा लैंड दे दीजिए, वही काफी है हमारे लिए। और हम दिखाएंगे। कोई बोलता है, हम बोलता है इधर पूरे नॉर्थ ईस्ट में, दिल्ली में कभी पूछा जाता है, मिजोरम के सीएम को वहां मुंबई में बोला जाता आपका आइडेंटिटी क्या है, लेकिन दिल्ली में जो लोग हैं, हमारा भाई बहन, आप सब लोगों को हम लोग ये बात बोलना चाहते हैं, नॉर्थ ईस्ट पूरे देश के साथ खड़े हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भी आपके जैसे, हमको आप इग्नोर नहीं कर सकता। ऐसा होना चाहिए, ऐसा ना हो। कोई एक जमाने में यूपी से भारत वर्ष की प्रधानमंत्री होते थे, फिर साउथ इंडिया से हुई, अभी गुजरात से है, और मोदी जी, अमित शाह जी दोनों गुजरात से है। कितना अच्छा लगता है। पाकिस्तानी लोग जब आके गुजरात में अटैक करता है तो इनका दिलों को कितना दर्द होता है वो महसूस कर पाते हैं हम। और आज मोदी जी और अमित शाह जी को भी ये दर्द महसूस करना चाहिए कि त्रिपुरा लोग अपने ही राज्य में आज माइनॉरिटी हो गया, उसको बचाने के लिए एक ही रास्ता है, अलग राज्य, वो है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। मैं इसमें कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूं, मैं किसी को एडवाइस नहीं दे रहा हूं। आप देखिए, दिल्ली में जब एक सिर्फ पेड़ पौधे को काटा जाता है तो ग्रीन कोड आ जाता है। यू कैनॉट कट इवन ए सिंगल ट्री, ग्रीन कोड इज देयर। और वहां त्रिपुरा में मनुष्य, मानव, मैन, ह्यूमन बींग, वो बिना खाना, बिना पानी, कोई अच्छा दवाई नहीं होता, वो मर जाता है, उसके लिए कोई कानून नहीं है। और यहां एक ट्रीज को भी आप काटा जाएगा, फिर भी सरकार उधर बात करता है। मोदी जी और अमित शाह जी को मैं आज अपील करता हूं, आप एक इतिहास लिख दीजिए त्रिपुरा के लिए, त्रिपुरा के लिए आप ग्रेटर त्रिपुरा लैंड देके एक इतिहास रचाइए, एक इतिहास बनाइए। आप बना सकते हो, आपके पास सब कुछ है, एमपी से राज्यसभा में है, लोकसभा में, हर जगह में आपका मेजोरिटी है, आप जो चाहते हो आप वो बना सकते हो। लेकिन हमारा ये बात को कभी इस तरीका से ना सोचे कोई कि कोई बंगाली के खिलाफ बोल रहा, कोई पंजाबी के खिलाफ बोल रहा, नहीं बोल रहा हूं। आपने अधिकार मांग रहा हूं, सिर्फ अपने त्रिपुरा को अपने अधिकार मिलना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो, देर हो जाएगा, त्रिपुरा से लोग रहेगा ही नहीं त्रिपुरा में। हम बोलना चाहते, त्रिपुरा से लोग पहले बंगाली नहीं बोलता था, आज 99% त्रिपुरा से लोग बंगाली बोल सकता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि बांग्लादेश से लोग आते ही रहता है, सब बांग्ला बोलता। ऐसा ना हो पूरे नॉर्थ ईस्ट में कल कोई नागा बंगाली में बात करेगा, कल कोई मिजो बंगाली में बात करेगा, बात करते करते दिल्ली तक पहुंच जाएगा। कल कैप्टन रथी विकास खन्ना के लोग भी बांग्ला ही बोलेगा, तब ये देश का अपना असलियत नहीं रहेगा। मैं यही बात को चेतावनी देता हूं कि ऐसा हो रहा है त्रिपुरा से, पूरे बांग्लादेश वहां से लोग आते आते अब त्रिपुरा में जगह है ही नहीं। इसीलिए भारत सरकार को हमारी तरफ से अपील है, नो आज इधर देयर आर सो मेनी इंटेलिजेंस एजेंसीज, यू आर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन that what this Tripura Motha is doing in Jamtar Mantar. Tripura Motha is only asking for statehood.
The demand is greater Tipraland. We are not asking separate country. We are only asking separate state. ये बात को भी समझना चाहिए. हम कोई अलग राष्ट्र नहीं मांग रहा है. हम मांग रहे हैं सिर्फ एक अलग राज्य हो तिप्रासा के लिए. आज तिप्रासा लोगों के लिए त्रिपुरा में हमारे काउंसिल बोलिए और काउंसिल के बाहर भी बोलिए, वहां कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा. जिन लोगों ने आके त्रिपुरा से दिल्ली में बैठे हुए सब लीडर को रिपोर्ट देता है, उसने तो दिखाया इंटरनेट में, हर जगह डेवलप हो गया. हीरा युग में है हम, कुछ नहीं हुआ. आज भी त्रिपुरा में बहुत सारे लोग भूखे प्यासे रात को सोते हैं. उसके लिए मोदी जी को फिर से हम याद दिलाना चाहते हैं. मोदी जी, हम सब आगे बढ़ेंगे. जब तिप्रासा लोगों को ग्रेटर तिप्रालैंड मिलेंगे, तब हम सब मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे. जब हमारा अपना ही स्थिति अच्छा नहीं है, तब हम देश के लिए क्या कर सकते हैं? हमारे ही वजूद, हमारे ही कंट्रोल, हमारे ही कुछ नहीं चल रहा उधर. हमारा जब चलेगा, हमारा जब होगा स्टेट, तब हम देश के लिए और अच्छा सोच सकता है. मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ऑल आवर वॉरियर्स दे ट्रैवल फ्रॉम त्रिपुरा टू दिल्ली, सब थके हुए हैं. कल फिर से हम लोग अगेन विल सिट फॉर अनदर 6-7 आवर्स हियर इन द सेम प्लेस. कल हम धरना में बैठेंगे एक ही मांग को लेकर के कि ग्रेटर तिप्रालैंड होना है. ग्रेटर तिप्रालैंड जब तक नहीं देगा, तिप्रासा लोग थानसा रहेगा और हम दिखाएंगे थानसा की ताकत क्या होता है. ये कोई चेतावनी नहीं. तिप्रासा लोग बिकते थे पहले, नोट देकर के तिप्रासा लोगों को खरीदता था. अखबार में छपवाया जाता है 6 MDC चला जाएगा बीजेपी में, 5 MDC चला जाएगा कांग्रेस में. हम लोग चैलेंज दे के बोल सकता है, कोई तिप्रासा को नोट के बदले में और खरीद नहीं पाएगा. हम थानसा रहेंगे. सिर्फ हमारा मांग की है, ग्रेटर तिप्रालैंड होना है. और हम हिंदुस्तानी है, भारत के साथ हम भारतीय है, हम इंडियन है, हम हिंदुस्तानी है. आप कुछ भी लैंग्वेज में बोलो, हर तिप्रासा हिंदुस्तानी है. भारत हमारा देश है, हमें अधिकार मिलना है. थैंक यू सो मच. ये बात करके मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मेरा जो छोटा सा आलोचना और खासकर से मोदी जी को याद दिलाने का जो बातचीत, मेरे ख्याल में इतना ही काफी है. मोदी जी फिलहाल इतना सुनते नहीं है. मैं एक चीज बोलता हूं आपको, कोई एक ऑफिस से 2 आदमी को बुलाया था इंटरव्यू के लिए. जब एक आदमी क्लरिकल के लिए गया, क्लरिकल पोस्ट के लिए, उसको 1 घंटा बिठा के इंटरव्यू लिया था. और जब कोई चेयरमैन पोस्ट के लिए गया था, वो सिर्फ 1 मिनट में उसका इंटरव्यू खत्म हो गया. बाद में जिन लोगों ने इंटरव्यू लिया, इनको पूछा गया कि भाई ये किस तरीके की इंटरव्यू है. जो क्लर्क में है उसको 1 घंटा इंटरव्यू लिया आपने, और जो चेयरमैन के लिए किया था उसको सिर्फ 1 मिनट में आप छोड़ दिया. बोलता भाई देखो, जो चेयरमैन बनता है वो टाइपिंग नहीं करता, वो सिर्फ सिग्नेचर मारता और खत्म. 1 मिनट में सिग्नेचर और खत्म. और इस प्रकार से मोदी जी भी ज्यादा सुनते नहीं है. मोदी जी सब समझता है, क्योंकि मोदी जी जब त्रिपुरा में जाता है, कॉकबोर्ग में बात करता है. कोई त्रिपुरा का मंत्री भी कॉकबोर्ग में नहीं बात करता, लेकिन देश का प्रधानमंत्री त्रिपुरा में जाके कॉकबोर्ग में बात करता है. हम मोदी जी को सम्मान करते हैं, हम मोदी जी को धन्यवाद देते हैं. आप लोग, हम तिप्रासा लोग ये मत सोचिए मोदी जी तिप्रासा को नहीं जानते. मोदी जी तिप्रासा को जानता है, और मेरा विश्वास है यही मोदी जी ग्रेटर तिप्रालैंड बनाएगा. आप देखिए, एक दिन बनाएगा. वो दिन अभी ज्यादा दूर नहीं.
जिस दिन मोदी जी त्रिपुरा में नहीं जाएंगे, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड में जाएंगे। मोदी जी ग्रेटर त्रिपुरा लैंड में जाएंगे और हम सब त्रिपुरा से लोग मोदी जी का कुर्ता पहन के उनको हम लोग वेलकम करेंगे एयरपोर्ट में। वो असली महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट होगा, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। मैं तो मानता हूं आप लोग, हम सब लोग दिल्ली में आया और मोदी जी को अभी प्यार होने लगेगा। मोदी जी इन सबसे बहुत प्यार करता है। आप देखिए जब भाषण देता है, मोदी जी बोलते रहते हैं, मेरा दिल, मेरा तन, मेरा मन पिछले वर्गों के साथ है। तो हम क्या आगे वाला वर्ग है? हम भी पीछे वाला वर्ग है। और मोदी जी डेफिनेटली हमारा पिछले वर्ग त्रिपुरा से लोगों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। वो कुछ ना कुछ नहीं, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड ही करेंगे। और हम वादा करते हैं, मोदी जी को हम वादा करते हैं, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के हर सब डिवीजन में मोदी जी का स्टेचू बनाया जाएगा और मोदी जी का स्टेचू हम लगाएंगे, क्योंकि मोदी जी ही त्रिपुरा के अधिकार को फिर से त्रिपुरा के हाथ में दिया। आप देखिए, मेरा तो बाकी लोगों का विश्वास हो या ना हो, मैं अनिमेश वर्मा, मेरा तो पूरे विश्वास है मोदी जी ऐसा वैसा लीडर नहीं है। भारतवर्ष में बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री हुए, लेकिन मोदी जी उन सबसे अलग है। मोदी जी आज वर्ल्ड लीडर है। अमेरिका में स्वागत किया जाता है मोदी जी के लिए, यूके में स्वागत किया जाता है। मोदी जी वर्ल्ड लीडर है, स्ट्रांग लीडर है। स्ट्रांग लीडर के कितना इंच का मेरा चेस्ट कुछ दिन पहले मेरा 41 इंचेस करके बोला। मोदी जी का 56 इंच का सीने में त्रिपुरा के लिए जगह है, जरूर जगह है। मोदी जी ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जरूर देंगे, लेकिन मोदी जी को याद दिलाते रहना पड़ेगा। इसीलिए जो लोग बोलता है भाई पिछले बार गया था, इस बार भी जाएंगे आप लोग, 2 बार में ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मिलेगी क्या? नहीं भी मिल सकता है। ये हमारा काम है, त्रिपुरा लोगों को काम है। हमको मोदी जी को याद दिलाते रहना चाहिए कि हमें ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चाहिए। और एक दिन मोदी जी अपने रूप में जब पार्लियामेंट में खड़े होके देश को संबोधन करेंगे कि हम त्रिपुरा लोगों के लिए भाई दे ही दिया ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, उस दिन हमारा जीत होगी, उस दिन हमारा जीत होगी। देखो भाई, हमसे कोई भाजपा से कोई दुश्मनी नहीं, कांग्रेस से हमारा कोई दुश्मनी नहीं, क्योंकि कांग्रेस भी पार्लियामेंट में जाके त्रिपुरा लोगों के लिए बात कर सकता। जब तेलंगाना स्टेट बनाया गया था तो भाजपा ऑपोजिशन में होकर के भी तेलंगाना के लिए उन लोगों ने भी बात किया था। आज राहुल गांधी जी है, बहुत सारे कांग्रेस के एमपीज है, आप लोग भी पार्लियामेंट में जा करके जब मोदी जी बोलेंगे किसी को ऐतराज है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के बारे में, कांग्रेस सांसदों को भी बोलना चाहिए हमको कोई ऐतराज नहीं है, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जल्द से जल्द हो। तभी आज हम गाते रहते सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अरे हम आज वही गाना को फिर से थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोलना चाहते, सारे जहां से अच्छा त्रिपुरा हमारा और ग्रेटर त्रिपुरा लैंड हमारा। वो होना चाहिए, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मिलना चाहिए। जब ग्रेटर त्रिपुरा लैंड होगा, आप लोग देखिएगा अमित शाह जी और मोदी जी का पूरा स्टेचू बना के, मायावती जी ने पहले बार हाथी बनाया था। हम वादा करते सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टेचू है उससे 2 गुना स्टेचू मोदी का बनाया जाएगा। लेकिन और भी वादा करता हूं, अगर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड होगा, मोदी जी को बारिश के दिन में भी हम दिखने नहीं देंगे, उनको हम सुरक्षित रखेंगे। और भी वादा करता हूं, मोदी जी को हम रात के अंधेरे में दिखाई ना दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोदी जी के लिए हम लोग अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देके रात को भी मोदी जी को दिखाई देना चाहिए।
इतना सम्मान हम करेंगे मोदी जी को। लेकिन एक ही विनती है, ग्रेटर त्रिपुरालैंड जल्द से जल्द घोषित किया जाए पार्लियामेंट में। बोल के अपना का कोई बोलता है खाना खाने के बाद, जैसे मुझे कोई घर पे खाने के लिए बुलाया तो हम बोलता भाई ठीक है, चिकन खिलाया, मटन खिलाया, उससे दिल भरता नहीं। मुझे अंतिम में, खाने के अंतिम में कम से कम अगर 2 गुलाब जामुन मिलता, मैं बोलता बस मैं आपको बोलता हूं, इतना हंगामा, इतना सब, इतना सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन। मैं मोदी जी के पूरे टीम को बोलता हूं, हमको कुछ नहीं चाहिए, आप दीजिए पैकेज, आप दीजिए बहुत कुछ, घर घर में सुशासन कीजिए, मोस्ट वेलकम। लेकिन हमको सिर्फ एक ही छोटा सा चीज चाहिए, वो है ग्रेटर त्रिपुरालैंड। हो गया, तब देखिए अब क्या होगा। अब ग्रेटर त्रिपुरालैंड के बाद हम क्या जंतर मंतर में आएंगे? हम जंतर मंतर में नहीं आएंगे, तब हम मोदी जी के चरण छूने के लिए उनके घर पे जाएंगे। लाखों हजारों तादाद में त्रिपुरा से लोग मोदी जी के घर जाएंगे, सिर्फ मोदी जी के पैर छू के आशीर्वाद लेने के लिए। बस हम क्या ये झूठ बात बोल रहा है? ये किसी को झूठ लग रहा है? ये असली सच्चा बात, ये 41 इंच सीने वाला बात, ये 56 इंच का नहीं है, लेकिन 41 इंचेस का ये बात है। और दिल से बोल रहा हूं, हम दिल से हिंदुस्तानी है। सब त्रिपुरा मोदी जी का आशीर्वाद लेंगे ग्रेटर त्रिपुरालैंड होने के बाद। बस ये ऐलान है, और मैं ज्यादा बात करना चाहता हूं। जब मैं कैप्टन रथी को देखता हूं, सिर्फ मुझे इशारा किया जाता है कि भाई और लगाओ, और बात करते रहो। देखिए, ज्यादा बात करने से कुछ नहीं हो। आप क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? हम मोदी जी को समझा दिया कि भाई मोदी जी हमको ग्रेटर त्रिपुरालैंड चाहिए। अगर उसके बाद भी आपको कुछ और बोलना है तो जाके डायरेक्ट 1-to-1 अपॉइंटमेंट में जाके आप बोलिए। ऐसा बात भी तो होगा, ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन में नहीं बोल सकता। जैसे मैं मोदी जी को मैं एक चीज जाके बोलना चाहता हूं, वो मैं इधर बोलना नहीं चाहता, फिर भी कैप्टन रथी ने बोलता है अरे बोलो। मोदी जी को मैं उनके कान में एक बार जाके बोलना चाहता हूं, मुझे 2 दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दीजिए। उस 2 दिन में वही 2 दिन में मैं ग्रेटर त्रिपुरालैंड दे दूंगा। बस खत्म। वो भी बस, वो अनिल कपूर ने किसी एक फिल्म में 1 दिन के लिए सीएम बना था, मुझे 2 दिन चाहिए। क्यों चाहिए? पहला दिन त्रिपुरा से आएंगे तो भाग जाएंगे, और दूसरे दिन नहा के अच्छा से मैं ऐलान करूंगा, मैं देश का प्रधानमंत्री ऐलान कर रहा हूं, ग्रेटर त्रिपुरालैंड हो गया। बस लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। असली प्रधान, वो तो नकली प्रधानमंत्री अनिमेष देबबर्मा होगा 2 दिन के लिए, लेकिन देश का असली प्रधानमंत्री का नाम है श्री नरेंद्र मोदी जी। वही असली प्रधानमंत्री है, और उन्होंने ही ये असली ग्रेटर त्रिपुरालैंड भी हमारे लिए देंगे। ये बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जो बेलाय हम भाई बुसुको सागा बुसुको ताम का सिलिया तबे देशनि प्रधानमंत्री अमन नाइनाई बो सेमानबो चिनी बक्तृता 3 বার नाइखा बहाइছে 3 বার नाइखा खबर दो এবং তাকলাই মো বক্তৃতার পরে 3/3 গুণগান 9 বার নাইনি বনাই যায় 9 বার নাইনি অমনংকা বেলায় বেলায় হামবাই তাকুতেই বুকুছ খনাটাও সাফায়ে একদম বড় ধামাকা তাইছে খাইবে। गली गली मोहल्लाय सुर शोना যায় একটা गली
গলি মহল্লায় সুর শোনা যায় একটাই, মানুষের অধিকার ঘরে ঘরে আবার। আসছে সুখের দিন, হচ্ছে বিকাশ মিটিং, প্রতি ব্লকে পঞ্চায়েতে গ্রাম পাহাড়ের উন্নয়ন, হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে প্রতি ঘরে সুশাসন। গ্রাম শহরের অলি গলি সবার মুখে একই বুলি, গ্রাম শহরের অলি গলি সবার মুখে একই বুলি, পৌঁছে দিতে উন্নয়নের সবার ঘরে প্রশাসন। এখন হবেই হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, এখন হবেই হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, এখন হবেই হবে প্রতি ঘরে সুশাসন। जो हमारा वॉरियर्स का सैक्रिफाइस है हमारे तोहफा के लिए, यहाँ में बुरुई है, बुमा है, यूथ है, हमारा बुरा लोग है। आप लोग ने जो तकलीफ कष्ट करके आप लोग अगरतला से या धलाई से या साबरूम से, ख्वाई से, पूरा कंचनपुर से, सब जगह से आप लोग यहाँ आए हैं, ये बलिदान आपका ऐसा नहीं जाएगा। हम लोग कुछ न कुछ तो करेंगे अपना तीव्रता के लिए। यहाँ में हमारे चेयरमैन है जगदीश बाबू, हमारे डिप्टी सीएम है, हमारे ईएम्स है, हमारा बुरी बोदल का प्रेसिडेंट है, एक्स एमएलए है वृषकेतु, मेवाड़ जमातिया है, हमारे सीनियर लीडर्स हैं, बहुत लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं लूंगा। YTF के वर्किंग प्रेसिडेंट्स हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, यहाँ क्यों आए? मीडिया ने भी बहुत क्वेश्चन पूछा है, दिल्ली से बहुत मीडिया लोग ने सवाल पूछा है कि आप दिल्ली में क्यों आए? तिपरा मोथा बुकुम बरा लोग दिल्ली में आकर जंतर मंतर में क्या बोलना चाहते हैं? ये तो आप त्रिपुरा से भी बोल सकते थे, लेकिन दिल्ली में आने का क्या दरकार है आपको? तो मैं दिल्ली के मीडिया को एक बात बोलना चाहता हूं कि हरियाणा में कुछ होता है तो आप माइक लेके चले जाते हैं, राजस्थान में कुछ होता है आप माइक लेके चले जाते हैं, यूपी में कुछ होता है, नोएडा में कुछ होता है, आप लोग कैमरा माइक लेके चले जाते हैं। त्रिपुरा में 75 साल में क्या अत्याचार हुआ है, हमारे साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, उसके बारे आपने ध्यान नहीं दिया। आज मैं आप सबको, हमारे वॉरियर्स लोग, सब लोग, आप लोगों को याद होगा 5 तारीख को बीजेपी ने बोला था कि नुयुम्मा का घेराव करेगा, ये लोग बोला था कि नहीं 5 दिसंबर को। आज 6 दिसंबर को हम लोग ने दिल्ली का घेराव किया है, दिल्ली का बहराव किया है। आप जितना मारोगे हम लोग उतना उठेंगे, आप जितना हमको दबाओगे हम इतना उठेंगे, क्योंकि हम लोग सत्य के रास्ते में, हम लोग झूठ का लड़ाई नहीं लड़ रहा है, हम लोग सच्चाई का रास्ता में जा रहा है। आज उनके पास पैसा है, उनके पास सिस्टम है, उनके पास सब कुछ है, हमारे पास सच्चाई का रास्ता है, हमारे पास पब्लिक। ग्रेटर तिपरालैंड का जो डिमांड है ये एक दिन में नहीं निकला, इसके लिए समय लगा है। आप सोशल मीडिया में प्ले करते रहते हो कि बुबागरा तो तिपरालैंड डिमांड नहीं करता था, आज क्यों कर रहा है? यही बुबागरा ने जब सीए के खिलाफ बात किया तो उसको हटाया गया। यही बुबागरा ने जब बोला कोयला जाति उलो पार्टी तो मुझे बेइज्जत किया गया। यही बुबागरा ने बोला अगरतला में हमारा तिपरासा का कुछ नहीं है, अगरतला में 1 सीट रिजर्व करके दे दो। हमको सब बोलते हैं कि खुमुलुंग आपका है, अगरतला किसी और का है, 1 सीट हमको दे दो। यही बुबागरा ने कांग्रेस में
बैठ के बोला एक सीट अगरतला में रिजर्व करा दो बुकुम्बारा के लिए, नहीं दिया। आज वही बुबागरा एक सीट के बारे में बात नहीं कर रहा है, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के बारे में। एक दिन में कोई आदमी बदलता नहीं है। एक दिन में कोई इंसान अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। क्यों किया है? मैंने खुद अपने आंख से देखा है। नेशनल पार्टी में जब हम अपना बात रखते हैं तो हमारा बात कोई नहीं सुनता। यहाँ में कोई लोग सीपीएम से आए हैं, कोई लोग कांग्रेस से आए, कोई लोग बीजेपी से आए। आप लोग भी मेरे तरह जानते हैं, मैं भी कांग्रेस से आया हूं, कि नेशनल पार्टी में हमको मौका नहीं मिलता। नेशनल पार्टी में अगर कहीं में किसी का प्रॉब्लम है, हमको अपना बुकुम्बारा के बारे में बात करना है तो भीख मांगना पड़ता है। मंचों में बैठने के लिए जगह नहीं मिलता है, बात करने के लिए मौका नहीं मिलता है, और हमको बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। ये कैसा सबका विकास है जब आप हमको 75 साल में अपना ही स्टेट में चांस नहीं देते हैं अपने ही दिल का बात करने के लिए। दिल में दुख लगता है जब ये वीडियो दिखाई पड़ता है। यहाँ में नायशा यू गेव अ स्पीच। हमारा आज औरत लोगों को सुरक्षा देना है तो हम वो नहीं कर सकते। अगर हमारा पूरी लोग अगरतला में प्रोटेस्ट करता है तो न्यूज़पेपर में छप जाता है लेंटा। अगर हम अपना दिल का बात इमोशन से बोले तो बोलते ये लोग तो उग्रपंथी। तो क्या करे? कोर्ट में जाता हूं तो कोर्ट बोलता है कि गवर्नमेंट ने रिप्लाई नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर विलेज काउंसिल इलेक्शन के बारे में बात करें तो ये लोग बोलते हैं अभी टाइम नहीं। हमारा अधिकार, हमने क्या गलत किया, हमने क्या गुनाह, हमारा गलती क्या है? मेरी ग्रैंडमदर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन किया मेरे पिताजी महाराजा किरण विक्रम के नाम। उस समय सरदार पटेल ने क्या बोला? कंचन प्रभा देवी को, राजमाता कंचन प्रभा देवी को, सरदार पटेल देश का गृह मंत्री, उसने कहा कि हम त्रिपुरा के लोगों को सुरक्षा देंगे। उनका आइडेंटिटी, उनका कल्चर, उनका जमीन, उनका भविष्य अब हिंदुस्तान की सुरक्षित हाथ में है। आपको चिंता करने का दरकार नहीं है राजमाता। आज से ये सब त्रिपुरा के वासी हमारे हिंदुस्तान के सिटीजन हैं। क्या मिला है 75 साल? आज क्या मिला है? अधिकार नहीं। इलेक्शन करना चाहे तो विलेज काउंसिल इलेक्शन नहीं, नौकरी करना चाहे तो नौकरी के लिए भीख मांगना पड़ता है। आज एडीसी में हमें जो आपने वोट देके बनाया, हमको भीख मांगना पड़ता है। तो आपका क्या पोजीशन होगा? बोलते हैं डेवलपमेंट मांगो, त्रिपुरालैंड मत मांगो। आपने 75 साल में डेवलपमेंट क्यों नहीं किया? आज जब हम लोग ग्रेटर त्रिपुरालैंड के बारे में बात करते हैं तब आप बोलते हैं नहीं नहीं अब डेवलपमेंट होगा। 75 साल तक क्या आप सो के बैठे थे? 75 साल तक त्रिपुरा क्या हिंदुस्तान का नहीं था? जब हमारा थानसा आता है, जब हमारा एकता आता है, आप सरदार पटेल के बारे में बात करते हो। सरदार पटेल ने हिंदुस्तान को एक किया, सरदार पटेल ने थानसा लाया, इसके लिए हिंदुस्तान बना। आज यहाँ में त्रिपुरा मोथा बुबागरा थानसा लेकर आकर त्रिपुरा साहब को एक कर रहा है। ये लोग सिर्फ पॉलिटिक्स करना जानता है, सिर्फ पॉलिटिक्स देखा है इन्होंने, सिर्फ वोट बैंक का राजनीति करता है ये लोग। कॉन्ट्रैक्टर, वही कॉन्ट्रैक्टर जो सीपीएम के टाइम में था, जो कांग्रेस के टाइम में था, आज बीजेपी के टाइम में है। कॉन्ट्रैक्टर वही है, पार्टी बदल गई। माफिया वही है, माफिया जो ड्रग सप्लाई सीपीएम के टाइम में करता था, कांग्रेस के टाइम में करता था, आज बीजेपी में है। माफिया वही है, झंडा अलग उठाता है। आज हमारा त्रिपुरा सालों, त्रिपुरा के जो बंगालीज है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, हिंदू है, उनका क्या हो रहा है? वोट के नाम में, पार्टी के नाम में, झंडा के नाम में आपको
बांटा है। आज तक कोई पार्टी ने थानसा के बारे में बात नहीं किया, क्योंकि ये लोग जानता है, ये नेता लोग जानता है, जिस दिन पब्लिक एक हो जाएगा ना, ये नेता का दुकान बंद हो जाएगा। इसके लिए ये लोग हमारा थानसा से चलता है। तीव्रलन होवे ना बोलता है, तो क्यों सुनील देवधर ने बोला था तिप्रा टेरिटोरियल काउंसिल बन गया है, मोदी जी ने नया कानून लाया है। कहां है ये कानून? कहां है ये कानून? इलेक्शन के पहले आप बोलते रहते हैं 7 पे कमीशन, इलेक्शन के पहले आप बोलते हैं बाटा मिलेगा, मिस कॉल करो नौकरी मिलेगा। अभी फिर से इलेक्शन आएगा, फिर से प्रॉमिस किया जाएगा। लेकिन मैंने क्या बोला, जब तक आप लोग राइटिंग में हमारे त्रिपुरा को कुछ नहीं देता है, हमारे त्रिपुरा के लोगों को कुछ नहीं देता है, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। पहले लालच दिखाया, लॉलीपॉप दिखाया। जब बुबागरा बात नहीं माना तो वही पार्टी आप बोलता है डंडा मारेगा बुबागरा को, डंडा टूट जाएगा, थानसा नहीं टूटेगा। मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूं। जब मैं पहली बार कंचनपुर गया, उस समय फायरिंग रेंज बन रहा था, यहां में शायद फिलिप और भवरंजन भी है। उस समय मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। मैं कंचनपुर गया, सबसे पहले मेरा ही पार्टी ने मेरा विरोध किया। जब मैंने डुंगुर के बारे में बात किया, सबसे पहले मेरे ही लोग ने मेरा विरोध किया। लेकिन मैं आज आंचलिक पार्टी में क्यों हूं? मैंने कल देखा किसी ने एक क्लिप लगाया सोशल मीडिया में कि तिप्रालैंड के खिलाफ मेरा बहन बोल रहा है। मैं यहां में चित्तो बाबू मेरे घर में आया, उन्होंने मुझे समझाया और कोई सोल्यूशन नहीं बाकी। उसके बाद मैंने चित्तो बाबू को बोला अभी नहीं, मैं सोचता हूं। मैं कंचनपुर गया, कंचनपुर में फायरिंग रेंज, उसके सामने फायरिंग रेंज हो रहा था, हमारा जमीन को हटाया जा रहा था, तिप्रा साहब को हटाया जा रहा था। वहां में एक रियांग से मैंने बात किया, बात करते करते वो रोने लगा। जानता क्यों वो रो रहा था? पेट में खाना नहीं था उसका, पूरा रात 2 दिन तक उसको खाना नहीं मिला था, पेट में खाना नहीं था। लेकिन हमारा तिप्रा सागर देखो ना, भूखा था लेकिन भीख नहीं मांग रहा था, भिखारी नहीं था। वो बोल नहीं सका कि पेट में खाना नहीं है, तो बोल नहीं सका कि भूख लग रहा है, तो वो रो रहा था लेकिन भीख नहीं मांगा। उस दिन मुझे लगा प्रद्योत तुम गलती कर रहे हो, अपना वफादारी पार्टी के साथ नहीं जाति का संग करो। सेकेंड टाइम मुझे लगा जिस दिन सीएए पास हुआ, जिस दिन सीए, हमने बहुत आंदोलन किया सीए के लिए, खुद चला बाईजाल से, हम लोग सब खुद चल के गया सीए के लिए, हम लोग ने सब ने आंदोलन किया। लेकिन जिस दिन सीए बिल पास हुआ पार्लियामेंट में, यहां में आपके रंजीत, उस दिन न्यूयुम्मा में कम से कम 300 से 400 बम फेंका गया। पटाखा, दिवाली बनाओ, सीए हो पास हो गया है, बम फेंको महाराजा का घर में, पटाखा। वो जख्म में
जख्म में नून लगाओ। जानबूझ के मेरे घर में 100 से ऊपर बम फेंका गया। दिवाली हो रहा है, सीए पास हो गया, तुम्हें कुछ करता पारलाम ना, क्या कर सकता है तुम, हम लोग ने पास कर दिया, क्या करोगे। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि अब मैं भी रिजाइन करके अपना जवाब दूंगा। देखो, एक सीट बोला था अगरतला में दे दो, आपने नहीं दिया। सीए में मैंने किसी भी हिंदू बंगाली के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं किया। मैंने सिर्फ ये कहा, हमने पहले से बहुत हिंदू बंगाली को रखे हैं। मिजोरम ने नहीं रखा है, नागालैंड ने नहीं रखा है, मणिपुर ने नहीं रखा है, अरुणाचल प्रदेश ने नहीं रखा है, सिक्किम ने नहीं रखा है, त्रिपुरा ने पहले से किया। आप उनको भी बोलिए रखने के लिए, हमने अपना दायित्व निभाया है, हमें और कष्ट मत दीजिए। लेकिन नहीं, जिन्होंने आज तक एक भी हिंदू बंगाली को नहीं रखा, आपने उनको फिर से एग्जेम्प्ट किया और हमें फिर से कहा करो। ये नाइंसाफी था। मैं कभी भी हिंदू बंगाली के खिलाफ नहीं, मैं उनका भी कष्ट जानता हूं, लेकिन हमारा हुकुमबारा का क्या गलती है कि कहीं और में कुछ प्रॉब्लम। आप अगर रखना चाहते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में रखिए, एक स्टेट को नॉर्थ ईस्ट में मत बोलिए कि आप फिर से रखिए, जबकि हमारा ही मिजोरम, हमारा ही नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम ने किसी को नहीं रखा। तो तिपरासा को फिर से क्यों आप प्रेशर में ला रहे? लेकिन नहीं, नेशनल पार्टी को समझना पड़ेगा कि ये जो तिपरासा है ना, ये 1970 का तिपरासा नहीं है जिसको डुंबुर से आपने निकाल दिया। ये वो तिपरासा नहीं है जिसको कंचनपुर में आप भूखा रख के कैंप में रखता रहा, जबकि कोई बांग्लादेश से आता था तो उसको राशन कार्ड मिल जाता था, लेकिन अपना रियांग को प्रमाण देना पड़ा कि वो हिंदुस्तान का नागरिक है। ये वो तिपरासा नहीं है जो माधवबारी में पूरी खाकर चुप बैठेगा। यहां में विश्वजीत देव वर्मा का नाना आया है, शायद ग्रैंडफादर आया है। यहां में ये आंदोलन में विश्वजीत देव वर्मा का, जो फायरमैन विश्वजीत देव वर्मा है, उसका ग्रैंडफादर आया है, यहां में है शायद, मैं कल मिला था। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं आपका नाती के नाम में पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, जब तक जिसने विश्वजीत देव वर्मा को मारा नहीं ना, उसको मैं जेल में डालकर उसको मारता नहीं होना, मैं रेस्ट नहीं करूंगा। ये प्रद्योत माणिक्य नेता नहीं है, पॉलिटिशियन नहीं है, आपका तिपरासा है। ये प्रद्योत माणिक्य बदलता नहीं है। और आपको मैं बोलना चाहता हूं, यहां में जो तिपरासा, जो मीडिया के थ्रू भी सुन रहा है, आपको मैं बोलना चाहता हूं, ये सस्ता राजनीति को छोड़ो, ये सस्ता राजनीति को छोड़ो। हम अगर थानसा रहेगा ना हमारा, तो सब कुछ मिलेगा। थानसा नहीं रहेगा, कुछ नहीं मिलेगा। 1984 में श्यामा बाबू, नगेंद्र जमतिया, TUJS, हरिनाथ देव वर्मा, अपना बीके रामपुर जंगल में था, लेकिन तभी भी हम लोग एक हुए तो इंदिरा गांधी, जो हिंदुस्तान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर था उस समय, उसने हमें TTA, DC और 6 शेड्यूल दिया, क्योंकि थानसा था, TUJS का थानसा था, इसके लिए हमें 6 शेड्यूल मिला और ADC मिला, इंदिरा गांधी ने दिया। आज मैं उसको आराम मिलेगा, ये अन्याय है। हिंदुस्तान का असली मालिक ट्राइबल है, जमीन का असली मालिक हिंदुस्तान का जनजाति है। आप नहीं बोल सकते कि जनजाति को बनवासी बन के रहना पड़ेगा। जो बनवासी बन के रहता है उनको भी स्कूल चाहिए, हमको भी रास्ता चाहिए, हम लोग चाहिए, रोजगार चाहिए। बोलना चाहता हूं, इसके बाद आप दिल्ली से वापस त्रिपुरा जाएंगे। रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ। इस बार
ये लास्ट मैन, टिल द लास्ट मैन वी विल फाइट। और जो लोग बोलता है नौकरी चाहिए, पोस्ट चाहिए, पद चाहिए, मैं आपको बोलता हूं एवरी मैन डाइज वन डे, बट लिव फॉर योर लैंड। एक दिन ऊपर वाला के पास हम सबको जाना है, एक दिन हम सबको मरना है, लेकिन अपना अधिकार के लिए अगर हमने फाइट नहीं किया आज, तो जिंदा रह के भी क्या फायदा है। इस बार अपना लोगों के लिए फाइट करेंगे। ये लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, आंसू निकलता है, ये डर का आंसू नहीं है, ये इंसान डरा हुआ नहीं है, ये दिखता लोग, हम लोग डरे हुए नहीं है, हम लोग गरीब हैं, हम लोग भिखारी नहीं है, हम लोग अपना हक का, अपना अधिकार का हक मांगेंगे। यहां में ईएम, डिप्टी सीएम, चेयरमैन साहब, एमएलए, मेवार, आप लोग ये बात मत भूलो, ये पोस्ट टेम्पररी है, ये पोस्ट टेम्पररी है। जिस दिन आप लोग कॉन्ट्रैक्टर से और ये गुंडा स्मगलर से डर के आप कॉम्प्रोमाइज करोगे ना, उस दिन वो आपका इज्जत नहीं करेगा। जिस दिन आप असली मंत्री बनके, असली लीडर बनके उनको ऑर्डर देके बोलोगे वहां में रास्ता में करप्शन है, रास्ता 2 इंच का है, 4 इंच का मिट्टी वो होना चाहिए, आप करप्शन कर रहे हो, काम करो, उस दिन वो आपका इज्जत करेगा। जिस दिन वो ड्रग स्मगलर जो नशा बेच के हमारा नेक्स्ट जनरेशन तिपरासा को खत्म कर रहा है ना, उस दिन उसको पकड़ के डंडा मार के उसको जेल के अंदर डाल के आप ले जाओगे ना, उस दिन वो पुलिस भी आपको सल्यूट करेगा, क्योंकि पुलिस भी त्रिपुरा को बदलना चाहता है। ये पावर पूरा जिंदगी नहीं रहता, लेकिन अच्छा नाम, अच्छा काम और इज्जत अगर आज आपने कमाया ना, तो हमारा तिपरासा लोग भी आपको आदर करेगा। नेतागिरी बंद करो, राजनीति बंद करो, राजनीति को शुरू करो, तिपरासा ठीक है। मेरा तिपरासा वॉरियर्स, आप लोग दिल का बहुत अच्छा है, ईमानदार है, आप में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग दिल से अच्छा है, हमारा बुमा लोग दिल से अच्छा है, आप लोग सच में सच्चा लोग। सिर्फ हमारा एक ही प्रॉब्लम है, हम लोग गरीब। लेकिन अगर 2 महीना नेता और तिपरासा सिर्फ तिपरासा के बारे में सोचे ना, पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही पैसा भेजेगा, स्कूल आ जाएगा, कॉलेज आ जाएगा, हॉस्पिटल आ जाएगा, रास्ता आ जाएगा। लेकिन हम लोग अगर अपना हक के बारे कॉम्प्रोमाइज कर दिया ना, ये बोलता है कि अपनी तिपरालैंड डिमांड करो ना, अपनी कॉलेज डिमांड करो, अपनी रास्ता डिमांड करो, अपनी चाकरी डिमांड करो। भाई अगर तिपरालैंड डिमांड किया तो क्या आप रास्ता नहीं बनाएगा? अगर हम तिपरालैंड डिमांड करेगा तो आप क्या हमारे बच्चा को शिक्षा नहीं देगा? अगर तिपरालैंड डिमांड किया तो क्या आप हमारे लिए रास्ता नहीं बनाएगा? ये क्या है? आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ लो, ये हमारा अधिकार है, हम डिमांड कर सकता है। अगर आप बोलेगा कि ये डिमांड किया तो आपको नहीं देगा, आप जेल में जाएगा, ये गैर कानूनी बात है, हमारा अधिकार है, हम अपना अधिकार डिमांड कर रहे हैं। आप लोग और एक बात सुन लो, ये बात जरूरी है, हमारा ब्लॉक, हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमारा वॉरियर्स, मैंने कहीं कहीं सुना है आप लोग कॉन्ट्रैक्टर के पीछे भाग रहा है। आपको लीडर किसने बनाया? बुबागरा ने। आपको लीडर से निकाल भी देगा बुबागरा। ज्यादा ये बंद करो।
ये माफिया पार्टी नहीं है, ये तिपरासा पार्टी है। ये लोग आपको बिगाड़ने के लिए आपको थोड़ा पैसा दे रहा है। आपका उद्देश्य क्या है? ग्रेटर तिपरालैंड। अगर अपना राज्य मिला, नौकरी आएगा, रास्ता बनेगा, स्कूल बनेगा, हॉस्पिटल आएगा, आपको शिक्षा मिलेगा। लेकिन अगर राज्य नहीं आया तो 2-3 लीडर लोग अमीर बनेगा, 2-3 लोग मंत्री बनेगा, 2-3 लोगों के पॉकेट में पैसा आएगा, तिपरासा गरीब रहेगा। तिपरासा को फिर से खेलेगा, इमोशन लेके तिपरासा को खेलेगा। बुबागरा का ये लास्ट फाइट है, ये मेरा लास्ट फाइट है। ये लास्ट फाइट मैं आपके लिए कर रहा हूं। ये लास्ट फाइट मैं बुमा के लिए कर रहा हूं। ये लास्ट फाइट मैं तिपरासा के लिए कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी, बुबागरा, बुबागरा। नरेंद्र मोदी जी, आप तो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। हम आपका आदर भी करते हैं क्योंकि आप देश का प्राइम मिनिस्टर हैं। कभी आप तिपरासा के बारे में सोचिए, कभी आप नॉर्थ ईस्ट के बारे में सोचिए। टाइम हैज कम फॉर यू नरेंद्र मोदी जी to think about Northeast India. Time has come about Narendra Modi ji to think about Tiprasa people in Tripura. Please do not play with our emotions. You are the Prime Minister of India. You are not the Prime Minister of BJP party. You are a Prime Minister of India. We are Indians. We love our country. We have been Indians before anyone in the Northeast. We love our country. हम हिंदुस्तान के हैं, आप हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। सोल्यूशन लेके आइए। आप NSCN से बात कर सकते हैं, आप अल्फा से बात कर सकते हैं, आप उग्रपंथी ग्रुप से बात कर सकते हैं, आप कश्मीर में हुर्रियत से बात कर सकते हैं, लेकिन आप तिपरासा से बात नहीं करते हैं। आप सिर्फ बोलते हैं कि ये पोस्ट लो, वो पोस्ट लो। हमको पोस्ट नहीं चाहिए, हमको तिपरासा का सोल्यूशन चाहिए। आप बुलाएंगे, मैं आऊंगा, लेकिन आप अपने पार्टी के लोगों को बोल दीजिए, प्रद्योत विक्रम मानिक्य को खरीदने का कोशिश मत करो। ये लास्ट फाइट हमारा है। अगर इलेक्शन के पहले नहीं माना तो राहुल गांधी, आप तो मेरे दोस्त हो, आपको तो मैं जानता हूं, आपके दिल में ट्राइबल के लिए प्यार है, तो आप क्यों नहीं बताते कि तिपरालैंड होना चाहिए? आप तो जानते हैं कि हमारा क्या कष्ट है, कितने बार बात भी हुआ है। आप दोस्ती को समझ के हमारा तिपरासा को हल्का मत कीजिए। मैं दोस्त बाद में हूं, पहले तिपरासा हूं। राहुल गांधी और सीताराम येचुरी जी, मैं आपको भी आदर करता हूं, लेकिन त्रिपुरा में CPIM कॉमराड वाला पार्टी नहीं है। CPIM ने तिपरासा का कुछ नहीं किया, सिर्फ मार्केटिंग किया पूरे हिंदुस्तान में कि एक गरीब चीफ मिनिस्टर है, मार्केटिंग किया। खुद तो अपना घर नहीं बनाया, एक तिपरासा का भी घर नहीं बनाया त्रिपुरा में, सिर्फ मार्केटिंग किया। मैं किसी के साथ नहीं हूं, मैं किसी के साथ नहीं हूं, मैं उसी के साथ हूं जो तिपरासा को सॉल्यूशन देगा। ठीक बोला कि गलत बोला? ठीक बोला कि गलत? और जो अपना बुकुम वाला लोग है, जो त्रिपुरा में है, जो नुयुमा को घेराव करने का बारे बात करता है, जो डंडा मारने का बात करता है, आपको मैं और एक चांस देता हूं, और एक चांस देता हूं। आ जाओ, क्योंकि वहां में आपका कुछ इज्जत नहीं है। वहां में आपको मंच में भी जगह नहीं मिलता है। वहां में अगर आपने इलीगल इमिग्रेंट्स बोला तो बोलता चुप हो जाओ। वहां में आपका कोई आदर नहीं है। यहां में आओ, आप अगर हमारा बेटी है, अगर आप हमारी गुस्सा है, आप आओ, हम आपका दरवाजा खोलते हैं, आओ। लेकिन अगर दलाली किया ना, अगर दलाली किया
नेशनल पार्टी का दलाली किया ना, तो आप डंडा क्या मारेगा? आपको आपका घर का अंदर ही जगह नहीं मिलेगा। जो हाथ के संग गद्दारी करता है ना, उसका जगह ना आसमान में होता है ना पतल में होता है। हाथ के साथ गद्दारी मत करो। ये मेमोरेंडम हमने साइन किया है। यहाँ में होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स भी है, आएंगे, हम ये मेमोरेंडम देंगे। इस बार हम कोई भी नेता से नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगरतला का प्रेस लिख देता है कि मिला अलायंस हो गया, एयरपोर्ट में मिला अलायंस हो गया, खाना खाया अलायंस हो गया, इधर मिला अलायंस हो गया। हम कोई भी बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम के नेता से नहीं मिलेंगे। ये मेमोरेंडम का कॉपी है। ये हमारा मेमोरेंडम का कॉपी है, हम लोग सबमिट कर रहे हैं, ठीक है? अगर एक्सेप्ट करना है तो आपके पास टाइम है, अभी भी एक्सेप्ट कर लो। अगर नहीं किया ना तो इलेक्शन में देखेंगे। बेलाइना हमारा
জেলায় জেলায় মেলা হবে, হবে ক্যাম্প শিবির, সরকারি সব সুবিধার থাকবে হাতায় ভিড়। আধার কার্ড বা প্যান কিংবা কিষাণ কার্ড, বাকি যা আরো আছে মনে রাখেন স্যার। সব সুবিধা দিতে এখন হাতের কাছে প্রশাসন, সফল হবে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, সফল হবে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন। কাকা কাকি যেটা যেটি ভাবছো কি বেশ, ভাতা পাবে যোগ্যরা ভাবনার দিন শেষ। আসছে এখন ঘরে ঘরে, আসছে এখন ঘরে ঘরে সরকার প্রশাসন, সবার দাবি হবে পূরণ, হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। মহিলাদের উন্নতি রাজ্যের অগ্রগতি, স্বসহায়ক দলের জন্য পাল্টাবে পরিস্থিতি। এই প্রকল্পের সুবিধা 3 লাখ মহিলার, মা বোনদের প্রয়োজন সবার হোক উন্নয়ন। তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন, তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন। কেন্দ্র রাজ্যের যোজনা পাইতে না আর ভাবনা, সব প্রকল্পের সুবিধা পাইবা হাতে হাতে। মেলা শিবিরে আসবে সময় মতে, জনগণের উন্নয়নে মাঠে এখন প্রশাসন, হবে নিশ্চয় প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে নিশ্চয় প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে নিশ্চয় প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে নিশ্চয় প্রতি ঘরে সুশাসন। নতুন ভোর দেখো নতুন আলো, আসছে নতুন দিন। উন্নয়নের গতি জানতে হচ্ছে, হচ্ছে বিকাশ মিটিং। বিকাশ হবে ঘরে ঘরে, বদলাবে সবার জীবন। রাজ্যবাসীর উন্নয়নে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। প্যান কার্ড আধার কার্ড কিংবা বৃদ্ধ ভাতা, পাননি যারা এখনো পাইবেন সবই হেতা, পাইবেন সবই হেতা। মেলা হবে শিবির হবে যার যাহার জায়গায়, দাবি দেওয়া যায় আছে পূরণ হবে ভাই, পূরণ হবে ভাই। সরকারের লক্ষ্য শুধু সবার উন্নয়ন, তাই তো হবে হবে রে ভাই প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। শোনেন শোনেন মা বোনেরা শোনেন দিয়া মন, নারী সশক্তিকরণ চায় সরকারে প্রশাসন। কালো দুয়া থেকে তারা মুক্তি পাইছে, উজ্জ্বলা যোজনা তাদের হাসি ফুটাইছে। এইভাবে তো মহিলাদের হবে উন্নয়ন, তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন, তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন। सारा देश की गौरव का प्रतीक जो पॉलिटिकल ऑफिस दिल्ली तुमने होम मिनिस्ट्री पीएमओ सेंट्रल एजेंसी जो नाउ न्यूक्लियर मुभमेंट आमली प्रमोनति डेफिनेटली दिल्ली तक जो दखल चलि दङ এবং আগামী দিন सेंट्रल गभर्नमेंट अवनति कमास Roma as we know as to the Chinese
হোম মিনিস্টার মালাইকা মিনিস্টার কোনো মিনিস্টারের মালাইয়া কারণ মালাইকা আছে অ্যালায়েন্স থেকে অ্যালায়েন্স হয়ে যাচ্ছে এই সমস্ত কপস আমাদের সেন্ট্রাল এজেন্সিস তো বিসিপি কিছু মেমোরেন্ডাম মহিলাদের উন্নতি রাজ্যের অগ্রগতি স্বসহায়ক দলের জন্য পাল্টাবে পরিস্থিতি এই প্রকল্পের সুবিধা 3 লাখ মহিলার মা বোনদের প্রয়োজন সবার হোক উন্নয়ন তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন কেন্দ্র রাজ্যের যোজনা बुबागनी तिदुंगबाई शालनि आचुक सभा खायति प्रामता दिल्ली लागरिखा आसुसिमिया बुबागनी चवानो फादर हासनि लुगरंग लगरिखा एबा सापोर्ट खलाइका जन्तर मन्त्र आचुक सभा खायमनि लगे लगे 10 डिसेम्बर सालमारिबो सेटांनि सिमि साकलाइजांमनि बिसिंतिनो बुरिरंनो लगेति फासे गनागै सानजनि दामबा तामै सदि थामनि तामजरा हमचां रेलि खायजांमा हाइकेनो इंडिया गेट बिस्कांगो ग्रेटार त्रिपुरालेनि ककपिरखा जानि जानि हदनि ट्रेडिशनल कानमुं जमुं बिसिंति फुनुं लाइका बुरिरंगो हाइनो ग्रेटार त्रिपुरालेनि तामनि बगै जबा खायना Kini bubagera ni mukun Bubagera ayo lokun ayo lokun ayo lokun Bubagera ayo lokun ayo lokun ayo lokun Greta Tripalen maro nai Greta Tripalen maro nai Ayo ke coba chole nai Ayo ke coba chole nai Diprasa ayo lokun ayo lokun Diprasa ayo lokun Dini matai no maro nai Dini matai no maro nai Ayo ke coba chole nai Hani noka, engkamuni, engki tongzangmani, usoja tongmani. Hani noka, engkamuni, engki tongzangmani, usoja tongmani. सब लोग जानते हैं कि एक सिंबल है हिंदुस्तान का इंस्टीट्यूशन का डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का और हम यहाँ में अपने बुमा पूरी बदल के संग आए थे TWF के संग आए थे क्योंकि हम ये मैसेज भी देना चाहते हैं त्रिपुरा में हमारे जो तिप्रसा लोग हैं तिप्रजक लोग हैं कि अब हमारा आवाज़ सिर्फ अगरतला में नहीं पहुँचेगा हमारा आवाज़ दिल्ली भी पहुँचेगा और अगर दिल्ली ने हमारा आवाज़ नहीं सुना तो हम उनको अपना आवाज़ इलेक्शन में दिखाएंगे রাজ্যের যোজনা পাইতে না আর ভাবনা সব প্রকল্পের সুবিধা পাইবা হাতে হাতে
শিবিরে আসবে সময় মতে জনগণের উন্নয়নে মাঠে এখন প্রশাসন হবে নিশ্চয়ই প্রতি ঘরে সুশাসন 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 নতুন ভোর দেখো নতুন আলো আসছে নতুন দিন উন্নয়নের গতি জানতে হচ্ছে বিকাশ মিটিং বিকাশ হবে ঘরে ঘরে বদলাবে সবার জীবন রাজ্যবাসীর উন্নয়নে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন প্যান কার্ড আধার কার্ড কিংবা বৃদ্ধ ভাতা পাননি যারা এখনো পাইবেন সবই হেতা মেলা হবে শিবির হবে যার জায়গায় দাবি দেওয়া যায় আছে পূরণ হবে ভাই সরকারের লক্ষ্য শুধু সবার উন্নয়ন তাই তো হবে রে ভাই প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন শোনেন মা বোনেরা শোনেন দিয়ামন নারী সশক্তিকরণ চায় সরকারে প্রশাসন কালো দুয়া থেকে তারা মুক্তি পাইছে উজ্জ্বলা যোজনা তাদের হাসি ফুটাইছে এইভাবে তো মহিলাদের হবে উন্নয়ন তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন ভারত সরকার রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান সংগ্রহালয় পরিষদ সংস্কৃতি মন্ত্রক এবং রাজ্য সরকারের বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে ছাত্রছাত্রীদের অপ্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষায় উৎসাহ দিতে ও বিজ্ঞান মনস্কতার প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রায় 6 কোটি টাকা ব্যয়ে উদয়পুরে একটি বিজ্ঞান কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। রাজ্যের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী রমেশ বাইস গত 28 ফেব্রুয়ারি 2021-এ এই বিজ্ঞান কেন্দ্রটির উদ্বোধন করেন। বিজ্ঞান কেন্দ্রটিতে তারামণ্ডল শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে প্রদর্শন এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা 124 আসনযুক্ত প্রেক্ষাগৃহ বিজ্ঞান উদ্যান ইত্যাদি সুবিধাসমূহ রয়েছে। শোনেন প্রিয় রাজ্যবাসী শোনেন সুখী সরকারি সহায়তায় হবে প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন 1905 নম্বরে যোগাযোগ করুন, কথা বলুন। সরকারের হাত শক্ত করুন নিজের মতামত দিয়ে শোনেন শুদ্ধি শোনেন শুদ্ধি এই রাজ্যের গ্রাম শহরে হবে বিকাশ মিটিং তারে সাথে জেলায় মেলা শিবির হবে দুদিন আমাদের সাথে আছেন বিধায়ক মন্ত্রীগণ আমাদের সাথে আছেন বিধায়ক মন্ত্রীগণ তাই তো এবার পৌঁছে যাবে প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন
কৃষি আর পরিবহন এসবের সুযোগ সুবিধা পাবেন জনগণ। সবার সাথে আছেন মোদের প্রশাসন, সবার সাথে আছেন মোদের প্রশাসন। এভাবে পৌঁছে যাবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। শুনেন শুনেন প্রিয় রাজ্যবাসী, শুনেন শুনেন সুখী জন। নকথুগুই সামগাহাম, নকথুগুই সুশাসন। Nabadi o marasho, khajani o kichicho. Tongkachang no gurum, chuba chuburum gurum. Tongkachang no gurum, chuba chuburum gurum. Haste hapaniya, lagdi kutum gurum. সাচুকু বুকচা পা অ নম্বর গরংলাইদি তাই কক সালাইদি Hihon, himbaidi, jini kichinsho. Hihon, himbaidi, mare kichinsho. Sabadi khaniko, tatongdi unklo unklo. Sabaidi, haniko, tatondi, uklo uklo. Kami bodol seba, munsidi lama kolo. Khana baidi, o maresho, khajani o kichinsho. Di hamkai miko khana baidi o mare shong khajani o kijing shong. Dimantho ubawo digola no brumo. Dimantho ubawo digola no brumo. Sakhami mantho gumo tunjanai no brumo. Khana baidi o mare shong khajani o Jinshong khana baidi o marishong khajani o kijinshong. थांनानै बागै नांखाय फाइचा मासो का भानो जों दिल्ली थाङै बुबाग्रानि जे ग्रेटा टिपलनि जों आन्दोलन खायनानै आबुन जों साक्सेसफुल खायनानै बागै थाङै दङ खस्थ'नो खस्थ' हियाखै जों दुखुनो दुखु के हियावैनो थांनाय दङ तानि माले जों बुबाग्रानि जे नाहारमुं ग्रेटा टिपालेन सिनि जे खुंथाय ब्रह्म थाङै लांनानै तंथाय हाकरैनो हाकलांनानै बागै जों आसो साइटुक दङनि बुबाग्रा आबनि लोगो सोंग्रानि फानिनानै बागै जों थाङै दङ जों कोनो दुखु खस्थ' म खस्थ'नो जों खस्थ' हिया आबुन बालासरानि बुबाग्रानो लगिरिनाय दाय दियाव थाङै जों जे सिनि ग्रेटा टिपालेननि डिमान्डनो जों साक्सेसफुल खायनानै बागै जों खालायनो हाम जों 29 कृष्णपुर पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट सिनि तेलमुरा संगारनि जों टोटाल सिनि कन्टिजेन्सिनि 24 ब्रैनो बादे स्लाउट बाय दै सिनि रेन्स पार्टिनि आसो दै ब्रैनिखा आं कालेक्सन खायजाखौ आसो साचुनाय हमनि ग्रेटा टिपालेन लगिरनाय मकोनो खुंथाय कल खुंथाय बारानिखौ गया और जतन सपोर्ट हेमनो ग्रेटा टिपालेन केबनि एगेन्स्टया केबनि बिरुदिया केबनि दम बिरुदुबिया ग्रेटा टिपालेन गांगाय सिनि थाङै थांनानै बागै जों मासां जों साइमन रायदेसिनि तिप्रा सारक खालायमां जों दिनै कतर सेग्लायमानि बागै जों दिनै महाय नुजागौ दिनै बाताल खैनाबो जों थाना मुसंगो नों एक समायो नों तिप्रासानो थानसा खालायो हनै नों बांलादेशनि बर' नों नरानि बागै और सुनि स्लोगान देखा दिनै नों हरते ताम कारने चिन पार्टी रक बुजिन थाय खालायो दिनै बाताल खैना हाय बर' खरकसा दफाना हामजा गनि खपंनाय पाकलेनि बुनि दफानि चिनि दफानो रां थुमै बथिनि सुप्रिम कोर्ट केस खाने हिथांनि दिनै रक साइमांखा जे दिनै बाताल खैनाबो बिनि बरक তিনি বিজেপি থাকো ফিয়াবা जोंर लुकरक स्राय बुजिगासिनो तिप्रासानो थांनाय खरकसानो तंसो लिडारसिनि तिप्रासाव कुनु तिप्रासाफानो कुनु लिडार्स माने निजिनि दफानि बागै जों नायनानै होनै जों खाखायमिया तांगै हिमालय एकमात्र चिनि बुबाग्रानो
bini ku don sampot nangya bo kurang puisa nangya bo bini pot bo nangya bo tini sini bosai tongo sabsomai diriko sai tongo dono nango ano nongni an logiri di ang nongni bagai mungsala mungsa tui fainai kang obono tai lukurono kongne songo mohai patal kina hai neta kawang macin thani fainai kintu ba 2023 patal kinale mohak kina phar phai tong dechini Tripura mathana sara kono government sarkar phaimia abo guarantee area person no sing belakana hambai mareo sini khorang tino sini Tripura hasteni boror jotano nubai thang hnai kok ke sing abono sini Tripura sarano muthangan bagai bubak kabang ma pai mukha phiaba sing tamnukha sing thansa hanai kesar matra sing pai themanogo phiaba chini bubak ra tabuk thansani marino nuhurui joto party CPM Congress BJP tabuk sing thansang kha tam karnangkha chini bubak ra ne bagai ekmatra obono sing obono salamu songo taklai 2023 je taklai 2023 chongma ringnai কিছুদিন পরে ন চিনি চংবারি ন जों ডিক্লার মানে जों খরানাই আপনি বাগে হাসতেনি Tripura सरनो जों अपनो कयनमु संगो जों तिनि अजागाव रेल बाय मासे मानंया कष्ट खलायै जों तिनि फुंनि जों ता कन्ट माइ मासे कुसिनर तंलाय रानर नायमानो तुइबो सिनर एकदम जों मानंया खायबनो तबो ग्रेटर Tripura लेन सानतानि चिनि Tripura सरनो बागै जों दिल्ली जन्तर मन्तर 5 तारिखो जों सगैनाय 5 तारिखो जों सगै माने लगे लगेनो जों मासे मानंया खायनो जों जन्तर मन्तर थांगै चिनि जे आरो जन्तर मन्तर जे चिनि आदिनि पान्डव जों आजागा पार्टिसिपेट खानान बागै जों ताबो थानबाय तियारं मचार First of all, I would like to thank our Bubagra for giving us such an opportunity to go and fight for our survival, for Tripura survival, and thank you so much our press media, Tripura media. Actually, we are going to Delhi not only for enjoying ourselves, we are going to fight for our Tripura survival, for the existence of our Tripura. You know that we are going to actually demolish and disappear from our own land, that means from Tripura. So yes, it is a constitutional rights to fight against any political party. So I would like to request all the Tripura people to come and join us to move for our survival, and the last position I want to request all the Tripura to come and join in our Thansa. And it's our actually this is not a communal, and somebody like from our opposition party, they said that we are communal, Bubagra is communal, but Bubagra is not communal, our Tripura Motha is not communal. It is our constitutional demand. And as per constitution, we have the rights to fight for our existence. Being a Tripura, you know that the Tripura is our own land. Then we are going to be deprived from any sources of development, from the development of government. Then you know that the illegal migrants are entering in Tripura, lots of illegal migrants. So then from our own land we are going to demolish, we are going to disappear from our own land. So it's our constitutional demand, and that's why we are demanding for our better Tripura land, separate state. I want to appeal to Pradhan Mantri, that means Prime Minister Narendra Modi ji, to fulfill our demand. Being a Tripura, we are demanding to you. It's our honor, and this is my last request to our central government to give us some permanent solution. Thank you. Aman sachem nin sara Tripura nang muthai supui ngai mai tinong Tripura mothang ngai ha Delhi jantor montor ang sitinin ha 2 tarik ata phut ha kai ni kai show kachang hitun ha kai ni ha kai se lai jing amata singnen lokong ai kan nang ni rang ba kan nang na mi hoyang kai nom i tam kai se tinong ha hitun asamoy kan kan ai ni jo omna kan ha ai repeat mangnong jo omna kan ha ja lai song ha ini 20 ta dofang ai ha rupainin sitai ti irang mai tinong ha je hitun asam ngai kan en ni nei mu man ya tam ka des ngai ling nong ha sial that ngai hong kharong ha hamong ngai kwang ha
ram hai ngai kan ram tharorok ngai tirbal ngai le rukhum ni no om ngai kwang kuli ngai kwang ha ini ha ina hangar payang tung ha ohong hamata singnen ha mohara sang ha abla bha champui penin kato ha ai omnong ha awni ta phut sengnen jarjir indong kan khom ha hi kai sina kan jontor montor kai sina kan khom ha chong kai nang ma chai pui thai snang ha kai nom emai tinong ai pathun jarjir pathun ai nei ai ni ha pathun khum ring ngai ai chang ai pathun khom ha ai ni la ai ni rang rung ai na mumang nong ha ai nin to ai nin ha i tho thai mani emai tung ha moharas khom ha amon ha asok ti le ha ta khom ha hi greater tripura len ha ai na man pui thai nani emai tinong ha loko pheng ha tang champui pik nong ha greater tripura len ha 100% honga tinin kai ni asa kai tho hima ha nang rang loko ngai na kai sana chang hi ji kangan kai herta শহরের অলি গলি সবার মুখে একই বুলি গ্রাম শহরের অলি গলি সবার মুখে একই বুলি পৌঁছে দিতে উন্নয়নের সবার ঘরে প্রশাসন এখন হবে প্রতি ঘরে সুশাসন এখন হবে প্রতি ঘরে সুশাসন এখন হবে প্রতি ঘরে সুশাসন জেলায় জেলায় মেলা হবে ক্যাম্প শিবির সরকারি সব সুবিধার থাকবে হাতায় ভিড় মহিলাদের উন্নতি রাজ্যের অগ্রগতি স্বসহায়ক দলের জন্য পাল্টাবে পরিস্থিতি এই প্রকল্পের সুবিধা 3 লাখ মহিলার মা বোনদের প্রয়োজন সবার হোক উন্নয়ন তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন কেন্দ্র রাজ্যের যোজনা পাইতে না আর ভাবনা সব প্রকল্পের সুবিধা পাইবা হাতে হাতে মেলা শিবিরে আসবে সময় মতে জনগণের উন্নয়নে মাঠে এখন প্রশাসন হবে নিশ্চয় প্রতি ঘরে সুশাসন 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 নতুন ভোর দেখো নতুন আলো আসছে নতুন দিন উন্নয়নের গতি জানতে হচ্ছে বিকাশ মিটিং বিকাশ হবে ঘরে ঘরে বদলাবে সবার জীবন রাজ্যবাসীর উন্নয়নে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন প্যান কার্ড আধার কার্ড কিংবা বৃদ্ধ ভাতা পাননি যারা এখনো পাইবেন সবই হেতা
মেলা হবে শিবির হবে যার যাহার জায়গায় দাবি দেওয়া যায় আছে পূরণ হবে ভাই পূরণ হবে ভাই সরকারের লক্ষ্য শুধু সবার উন্নয়ন তাই তো হবে হবে রে ভাই প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন শোনেন শোনেন মা বোনেরা শোনেন দিয়ামন নারী সশক্তিকরণ চায় সরকারে প্রশাসন কালো দুয়া থেকে তারা মুক্তি পাইছে উজ্জ্বলা যোজনা তাদের হাসি ফুটাইছে এইভাবে তো মহিলাদের হবে উন্নয়ন তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন ভারত সরকার রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান সংগ্রহালয় পরিষদ সংস্কৃতি মন্ত্রক এবং রাজ্য সরকারের বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে ছাত্রছাত্রীদের অপ্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষায় উৎসাহ দিতে ও বিজ্ঞান মনস্কতার প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রায় 6 কোটি টাকা ব্যয়ে উদয়পুরে একটি বিজ্ঞান কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। রাজ্যের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী রমেশ বাইস গত 28 ফেব্রুয়ারি 2021-এ এই বিজ্ঞান কেন্দ্রটির উদ্বোধন করেন। বিজ্ঞান কেন্দ্রটিতে তারামণ্ডল শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে প্রদর্শন এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা 124 আসনযুক্ত প্রেক্ষাগৃহ বিজ্ঞান উদ্যান ইত্যাদি সুবিধাসমূহ রয়েছে। শোনেন প্রিয় রাজ্যবাসী শোনেন শোনেন সুখীজন সরকারি সহায়তায় হবে প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন 1905 নম্বরে যোগাযোগ করুন কথা বলুন সরকারের হাত শক্ত করুন নিজের মতামত শোনেন শোনেন সুখীজন শোনেন শোনেন সুখীজন এই রাজ্যের গ্রাম শহরে হবে বিকাশ নীতি তারই সাথে জেলার মেলা শিবির হবে দুদিন আমাদের সাথে আছেন বিধায়ক মন্ত্রীগণ আমাদের সাথে আছেন বিধায়ক মন্ত্রীগণ তাই তো এবার পৌঁছে যাবে প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন স্বাস্থ্য শিক্ষা কৃষি আর পরিবহন এসবের সুযোগ সুবিধা পাবেন জনগণ সবার সাথে আছেন মোদের প্রশাসন সবার সাথে আছেন মোদের প্রশাসন এভাবে পৌঁছে যাবে প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন শোনেন শোনেন প্রিয় রাজ্যবাসী শোনেন শোনেন সুখীজন নকথুগুই সামগাহাম নকথুগুই সুশাসন খানাবাদি ও মারেশন খাজানি ও পিচিশন তঙ্কচাং নগরুম চুবাচু বুরুম বুরুম তঙ্কচাং নগরুম চুবাচু বুরুম বুরুম আসতে হাপানিয়া জাগদি কুথুম করুম সাচুকু বুকচা পা অ নম্বর গরংলাইদি
তাই কক সালাই দি হিমাইদি চিনি কিচিংশ হিমাইদি মারে কিচিংশ সাবাইদি খানিকো তাতংদি উকলো উকলো সাবাইদি খানিকো তাতংদি উকলো উকলো খাপাংনি বদল সেবা মুছিদি নামা বলো সাবাইদি ওমারে শো খাজানি ও কিচিংশ MLA mantri bai hasteni MP rok bai meeting go achuk lage chablai di hamkai miko khna bai di o mare shong khajani o kijing shong dei matho hobawo dei gola no grum grum dimantho hobawo dei gola no grum grum sakhami mantho gumo janai no grum grum khna bai di o mare shong khajani o kijing shong khna bai di o mare shong khajani o kijing shong তার জন্য আমি খেলোয়াড়দেরকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার সম্মুখে যারা অফিসিয়ালরা অর্থাৎ এই খেলাকে পরিচালনা করার জন্য আপনারা এখানে মন্ত্রী হয়ে বসে আছেন, আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনারা এই প্লেয়ার এই যে খেলাধুলার মানকে আরো উন্নত করার জন্য আপনারা যে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন তার জন্য আপনাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি দেখেছি এই ত্রিপুরার যে প্রতিভার অভাব নেই, এই প্রতিভাদের জাগরণ করার জন্য যে পরিকাঠামো বিগত দিনে আমরা দেখেছি এই পরিকাঠামোর অভাব ছিল, কিন্তু আজকে এই পরিকাঠামোর যে অভাব সেই অভাবটা অনেকটা কাটিয়ে আজকে এই খেলাধুলার মানকে আরো কিভাবে উন্নত করা যায় তার একটা প্রয়াস আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে আমাদের রাজ্যের যারা সরকার পরিচালনা করছে তাদের মধ্যে একটা এই খেলার মানকে উজ্জ্বল করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। আমি জিমন্যাস্টিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছি। আপনারা সবাই জানেন দীপা কর্মকার আমাদের কাছে সুনামে এই ত্রিপুরা রাজ্যের গৌরব সারা ভারতবর্ষকে উজ্জ্বল করেছে। তো এই যে আমি প্রথম যখন সভাপতি হয়ে দিল্লিতে ফেডারেশনের মিটিং এ আমি যোগদান করার জন্য আমি সেখানে উপস্থিত হই, মানে ত্রিপুরা শুনলেই মানুষের মধ্যে একটা যে একটা আলাদা সম্মান আলাদা চোখে দেখা তার একটা মানসিকতা আমি দেখেছি। তো আমি এই ত্রিপুরাবাসী হিসাবে আমি নিজেকে খুব গর্বিত মনে করি। তো কাজে আমি কথা বাড়াচ্ছি না, আমি শুধু আপনাদের কাছে যারা এখানে উপস্থিত আছেন এবং দর্শক আসনে যারা বসে আছেন আমি তাদের কাছেও বলবো যে আপনারা এই খেলাধুলাকে আজকে এই খেলাধুলার মাধ্যমে আমাদের সুস্থ জীবন সুস্থ সমাজ আমরা গঠন করতে পারি। এই খেলাধুলার মানকে আরো উৎসাহিত করার জন্য আপনারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন। আমি সমস্ত টিম যারা এখানে উপস্থিত হয়েছে তাদেরকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, শুভকামনা জানাচ্ছি এবং যারা এখানে আমারও উপস্থিত হয়েছে সকলকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার কথা বলা শেষ করছি। নমস্কার। রাজ্যের যোজনা পাইতে না আর ভাবনা, সব প্রকল্পের সুবিধা পাইবা হাতে হাতে। মেলা শিবিরে আসবে সময় মতে, জনগণের উন্নয়নে মাঠে এখন প্রশাসন।
হবে নিশ্চয়ই প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে নিশ্চয়ই প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে নিশ্চয়ই প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে নিশ্চয়ই প্রতি ঘরে সুশাসন। নতুন ভোর দেখো নতুন আলো, আসছে নতুন দিন, উন্নয়নের গতি জানতে হচ্ছে, হচ্ছে বিকাশ মিটিং। বিকাশ হবে ঘরে ঘরে, বদলাবে সবার জীবন, রাজ্যবাসীর উন্নয়নে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। প্যান কার্ড, আধার কার্ড কিংবা বৃদ্ধ ভাতা পাননি যারা এখনো পাইবেন সবই হেতা, পাইবেন সবই হেতা। মেলা হবে, শিবির হবে, যার যাহার জায়গায় দাবি দেওয়া যায় আছে পূরণ হবে ভাই, পূরণ হবে ভাই। সরকারের লক্ষ্য শুধু সবার উন্নয়ন, তাই তো হবে হবে রে ভাই প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। শোনেন শোনেন মা বোনেরা, শোনেন দিয়ামন, নারী সশক্তিকরণ চায় সরকারে প্রশাসন। কালো দুয়া থেকে তারা মুক্তি পাইছে, উজ্জ্বলা যোজনা তাদের হাসি ফুটাইছে। এইভাবে তো মহিলাদের হবে উন্নয়ন, তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন, তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন। ভারত সরকার রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান সংগ্রহালয় পরিষদ, সংস্কৃতি মন্ত্রক এবং রাজ্য সরকারের বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে ছাত্রছাত্রীদের অপ্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষায় উৎসাহ দিতে ও বিজ্ঞান মনস্কতার প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রায় 6 কোটি টাকা ব্যয়ে উদয়পুরে একটি বিজ্ঞান কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। রাজ্যের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী রমেশ বাইস গত 28 ফেব্রুয়ারি 2021-এ এই বিজ্ঞান কেন্দ্রটির উদ্বোধন করেন। বিজ্ঞান কেন্দ্রটিতে তারামণ্ডল, শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে প্রদর্শন এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা, 124 আসনযুক্ত প্রেক্ষাগৃহ, বিজ্ঞান উদ্যান ইত্যাদি সুবিধাসমূহ রয়েছে।